the divine consciousness, that is what he is impregnated into the ethos of Apollo in the temple of Lord Jagannath here at Puri. And when Lord Jagannath was coming in behind his real style of walking down the stairs or even the land road to ride the chariot, the movement explained the theory of Pragyan Brahma. There is non-duality, and Brahma is one, that is, and Brahma is not anything outside, it is the consciousness that is there in everyone. Consciousness is Brahma. And when Adi Shankara established 4 cardinal maths in different parts, now the Her Excellency the President of India, Srimati Draupadi Murmu, alongside His Excellency the Governor of Odisha, Sri Raghur Das, and also the Chief Minister of the State, Honorable Sri Mohan Maji, and the former Chief Minister of the State, Sri Naveen Patnaik, along with the Honorable Minister of State for Education, Honorable Minister of Union Government for Education, Sri Dharmendra Pradhan. They are all seated here. They have come to be a part of the celebration. And very importantly, today, on this day, particularly on this unique day, there is no state function that is allowed. Even though Lord Jagannath is not officially declared to be the state deity, but still then, it is the love of the people, it is the belief of the people, it is the practice of the people that everybody is attached to Lord Jagannath that day. The pontiff of Govardhan Pitha has grown older definitely, but not in spirits. He is helped in a wheelchair to go in rounds of the chariots before he takes the exit to go back to Upanishad Sri Govardhan Pitha. And Pitha was in charge of the ideas of the Vedas, the Rig Veda, and Upanishads, which are 3 Upanishads, wherein Pragyan Brahma is established. And the presiding deity of the monastery is Lord Jagannath himself, and other presiding deity, the mother power, is Vimala. And here in the temple, where the food offering is made to Lord Jagannath, a part of it is taken to Vimala's temple, and after that, it is only available for the general public and it becomes Mahaprasada. It's not just Prasada, it is Mahaprasada. Means it has plenty of 56 types of delicacies are prepared every day, some dried and some wet also. And rice offering is also made. And dry offerings are mostly made in the evening, the offerings are made. And this is how the practice is done. And the order of learning is Prakasa, and the title of the monastery here is Bhogavai. Bhogavai is the order there, and the monks, they have a different order. There are 10 types of monks in India in Sanatana Dharma that allows. And here we have the Vana order. They belong to this monastery, Govardhan Math. The oldest and foremost monastery to have been founded in Puri is Govardhan Math. And known as the Govardhan Pitham also, that was founded in about 486 before Christ, more than 2,500 years back, by Sri Adi Shankara, who hails from Kalki in the present day state of Kerala. So, stage is all set and ready, and after that, there will be small rituals. The base of the message of Lord Jagannath, Lord Balabhadra, and Ganesh Subhadra will be little adjusted so that they will be made presentable for the journey. And after that, the Holy King, the Rajpuri Maharaja of Puri, he is called the Thakur Raja, translated into English as Holy King, he will be coming. And here, talking about the Matha, there are many Mathas also. Ramanuja had founded the Imam Matha, which is just in front of the Eastern Gate, that is Lions Gate. A large part of it has been demolished, and Imam Matha still exists, and historically Imam Matha has a larger contribution to the formation of the state of the province of Odisha, and that much promoted and patronized art, culture, and also it had one of the biggest and the profoundest library, governmental library, has been existed now. And here, all attention is on the Sri Naveen Patnaik, and he is the ex-chief minister, former chief minister of the state, and wherever he goes and he puts around, and here he is surrounded by all the praise people and also servitors also. The Madhvacharya had established in Madhvacharya Chadamata. And Sri Chaitanya, one of the biggest proponents of Vaishnavite tradition, he established the Madhvacharya Chadamata. And they people come with the holy vesture just to be a part of the festival here. And here the dignitary is seated, looking at the lords and the festivities from a close vicinity. Then Madhvacharya, Mahaprabhuji Vaidar, then the Madhvacharya Mata, that is just in front of the Lions Gate on the other side of the Grand Road. And then Kabir Chora Mata, that was founded by Sant Kabir, Guru Nanak, and Baul Mata, and Muhammad is no longer there. It has been demolished, it was closer to Imam Mata. Of course, Baul Mata is there on the way to the seashore, about 200 yards from the Lions Gate. And Jaydev had the Savatara Mata, where Sire he had composed Gita Women, that is sung every night rather, before Lord Jagannath. And then Vira had come and had founded Nandi Mata, and Haridasa had Siddhapur Mata, and that supplied different articles to the temples, festivities, and Pranaja. He had Musa Mata, and by Ramananda, in Jagannath Vallabh Mata, he had the largest areas on Jagannath Vallabh Mata, and it had the Utkarya tradition in the Vaishnavite practice. The Bhakti Jagannath Das Bhavaniya Mata and Sakanavali Mata. Sakanavali Mata is near the seashore, and Lakshmi Maharaja is getting out of his Sri Nahara, the official residence of the Lakshmi Maharaja. And this is a thing to be seen and understood also. When Lord Balabhadra was coming in Bahani, there was a black umbrella moving in the royal procession. And when Lord Jagannath was coming, before him there was a white umbrella. And here, when Lakshmi Maharaja is coming, he is understood to be the divine incarnate of Lord Vishnu. Before him, there are the white and black Shaktis are there, and they are survived by the temple. And also some of the monastic orders and the members of some of the schools of practice, they also come with their Tadasa. Instead of the stars, they also partake. And the banquet that is carried to take the Lakshmi Maharaja is called Tamjan. Tamjan is not an Indian word or even a Sanskrit word, it is a word of Persian origin. And it is also called Mahana in the local language, and it has got on the top of it the very insignia that is the blue wheel, and that in fact is the coat of arms, of course the coat of arms that he uses has got the elephant image because he is Rajpati, he enjoys the title of Rajpati, and Rajpati has got the gaja of the elephant symbol there. And it is velvet covered palanquin,
It's covered and he's carried by people there. And along with him, there are other people who come because he comes with his couriers. The bucket is there, he sprinkles water, he basically, and this is how he moves. And all around the procession, the middle procession that moves, the people start chanting the name of Lord Jagannatha, Jai Jagannatha, Hare Krishna, and also they take the name of the Gajapati Maharaja and sing the glory of the Gajapati Maharaja because he is no different from the structure of the temple or the administration of the temple. And the focus include Bhakti, Garadu, Khatwari, Rajguru, Moduri, Mehta, Kohiyari, along with the Gajapati are there. And if we look at the dress sense of the Gajapati Maharaja, he is dressed in immaculate white with white headgear, and this headgear is different from the white headgear that we come across in different parts of India. And he has the visual serpent there and also hanging himself. Of course, they have got the Mughal connections also, the Mughal style of jewelry adopted. And this type of jewelry were used by royal people for hundreds of years in India. And the dress that he uses, the upper part of the dress, is called the Angrakha, and it was mostly popular in Rajasthan and was prototyped on the basis of Mughal. And some people believe that the Mughals influenced the Rajasthani Angrakha, but the actually each Angrakha is of Rajasthani origin, and length of the Angrakha actually decides to which caste the wearer belongs to. The Rajput wears a little longer, and here when Gajapati Maharaja will be wearing that, we will find that it is knee length. And those people who belong to the Vaishya community or the business class, they wear it to the waist level. So there is everything is codified, even the dress is codified. Even the laws have codified this, and this is the rajas they are coming from different monastic orders also. And Gajapati Maharaja will be alighting 3 rounds, he will be moving on the floor of the chariot. And here is the ambulance, this has been arranged for the district administration and with the support of the temple administration to provide support to the many people because some amount of community is there. And this is very common in this part of the year. However, this is the sea of crowd and it gets taken every moment. And everybody is very watchful to watch this event of Cherab Maharaj. This is one of the highlighted events because Gajapati Maharaj is understood to be an inseparable part of Jagannath culture, and he is understood to be living incarnate of Lord Vishnu. And after that, there will be the pulling of the chariots. Now, আমার থেকে ভাই বলতে তাই আমার পাশে লোকে এটা ইয়ে করে বলছে এটা দিতে যাও তুমি যাও তুমি দিতে দিতে বলছো জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা গোটা দেশের সাথে রাজ্য মহাধুমধামে পালিত করছে রাজ্যের রথযাত্রা নানা প্রসঙ্গে জগন্নাথ দেব এবং ইস্কন মন্দিরের রথযাত্রা গত বছর ক্রীড়া রথযাত্রা একদিন আগে ইস্কন মন্দিরের ঘোষণার কথা বলা হয়েছে। এবছর রথযাত্রা শ্রেণী প্রশাসন উদ্যোগ বেশ কিছু নীতি নির্দেশিত করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের জেলা শাসক ডক্টর বিশাল রায় এই নির্দেশের কথা জানিয়েছেন। প্রশাসনিক নীতি নির্দেশিত রথযাত্রা আয়োজন করা दुर्गा प्रभु जगन्नाथ राजा पुरुषोत्तम देव को चरण धारण करते हुए रथयात्रा गोटा देश के राज्य महाधुमधाम पालित करते हुए ऐसे राजा से करने इनकार कर दिया जगन्नाथ देव एवं ऐसे में गत वर्ष की रथयात्रा के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ राजा पुरुषोत्तम देव का अपमान नहीं बल्कि महाप्रभु जगन्नाथ संस्कृति को जगन्नाथ संस्कृति का ही अपमान। इस वजह से राजा पुरुषोत्तम देव साधु दर्शन के राय राज्य के राज्य में पालित करते हैं और इसमें जगन्नाथ जीवन में पश्चिम में गत वर्ष जगन्नाथ ने समझ हर गाय कि मैंने ऐसा क्या अपराध किया है जो मुझे मारना पड़ेगा। महाराज स्वप्न दर्शन और विजय यात्रा के आश्वासन के साथ जगन्नाथ अपनी भक्ति की रक्षा अपनी बड़ी भाई बलभद्र के साथ अपने भगवान को अर्पण करें और शाम को हमारा सुंदर राजधानी भक्तों का कृष्ण मंदिर में गुजरते हुए आसन में जगन्नाथ जगन्नाथ को मानने के लिए ये ले शामिल है उपरोक्त राजस्थान के समक्ष जो छत्र दिया जाता है उस छत्र और उनके घोड़ों का और जिस घोड़े पर सवार होकर गए कांची में ज्ञान कर युद्ध करने की सब और ये इसके घर को और उनके खबर आहार बलदाव उनके रखे घोड़े जिस पर सवार होकर गए उनके सब कुछ चला जाता है। अब यहाँ पर हुआ ऐसा कि दो भाई अपने अपने निर्धारित घोड़ों पर सवार होकर जब युद्ध करने जा रहे थे रास्ते में और उन्होंने देखा कि एक बालक दो सामने देख उन्होंने और जब ऐसे एक बोले उन्होंने जगन्नाथ ने अपनी निगाहें और ये आश्वासन दिया कि पीछे से राजा आ रहे हैं और वे इस राशि को दान करेंगे। शासन होने के बाद दो भाई आए
थोड़े ही देर पीछे जब राजा को अपने स्टैंड पर निकाल रहे थे उस वाले ने रोक लिया और दुल्हा को दिखाते हुए हल्की चटुंदर तरकीब मार তাদের সংস্পর্শে অমিতাভ খুশি और कांची विजय जब विजय करते थे राज ওনাকে ने বেশি उन्हें কথা कांची गणेश रत्न सिंहासन বেশ কিছু নতুন কিছু কথা দিয়েছে सिंहासन पर भाग दिलाते हैं और कांची गणेश का मंदिर भीतर गया अर्थात महाप्रभु के मंदिर के पीछे है जहाँ मंदिर का प्रवेश होता है और पद्मावती की विवाह की जब बात आई तो राजा अभी भी अपने इधर भगवान की ज्वाला ले रहे थे इसीलिए उन्होंने कहा आप इनका बात से राजी करेंगे मंत्री ने अभी सूझ दिखाई पद्मावती को रथ के पास ले आए और उन्होंने कहा इनसे बड़ा और बात हो सकता है जो महाप्रभु के रथ को मार रहे हैं इस तरह से निश्चित रूप से महाप्रभु जगन्नाथ की सृष्टि और महाप्रभु के इतिहास के साथ एक बहुत सुंदर तरीके के इतिहास के साथ बहुत सुंदर संबंध रखता है यहाँ पर चेरा महाराज की सवाल करने के लिए महाप्रभु के प्रथम सेवक महाराज यहाँ पर प्रसिद्ध है चेरा महाराज के अंदर बहुत सारे सेवक हैं जो अपना अपना कार्य करते हैं अगर सेवाओं की बात करें तो फिर श्रीमंत के सेवक समाज में जो कार्यों का जो विभाजन है चरण विभाजन है वो निश्चित रूप से एक उदाहरण प्रस्तुत करता है हर एक कार्य को करने के लिए अलग अलग सेवक नियोजन है उस कार्य को कोई और नहीं कर रहा इसीलिए इतने सारे सेवक दे रहे हैं हर एक काम करने के लिए अलग अलग सेवक हैं और माला मांझी में उल्लेख है कि राजा अनंत भीमदेव ने 36 साल योग रखा 36 सेवाओं की बात की है और ये 36 प्रकार के सेवक हैं और इनमें भी जो है अंतर भेद हम देख सकते हैं और इनके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग सेवक हैं एक सेवक के अंदर जैसे चुना सेवक है अलग अलग चुना सेवक को जो मन के ऊपर प्रतिपादन प्रकार लगाते हैं तो चुना सेवक के इस सेवा के अंदर भी जो सेवक हैं उनके अलग अलग कार्य जो है तय है क्या देखिए महाराज जो है आरती कर रहे हैं बलिदान की और उसके बाद फिर वे एक करके अलग अलग रथ में जाएंगे और वहाँ चेरा महाराज की नीति जो है समाप्त करेंगे अब इस चेरा महाराज की नीति को समाप्त करते समय जो है कहालियाँ और वे लोग अंत में हाली गाते हैं जय हाली की कार्य का प्रारंभ हुआ और कार्य का समापन हुआ जब देख सकते हाली खड़े रहते हैं राजगुरु चेरा महाराज उपकरणों को मंत्रों से संस्कार करते हैं और उसके बाद गरुड़ राजा के हाथ पर चढ़ने के लिए जो है और अलग अलग अवसरों पर जब जल की आवश्यकता पड़ती है चेरा महाराज की वे जल के पात्र को लिए होते हैं भंडार में का सोने का पात्र गर्भदानी आम पात्र सोने की पानी झाड़ू सोने का दंड और चावल आदि को भंडार से लाने का होकर दायित्व है उनको स्वीकार कर उनका प्रयोग करने का दायित्व दूसरे से होता है पहला वाली फूल मालाएं फूल आदि लेकर आते हैं इस प्रकार से यहाँ पे भंडार में का जो है भंडार से अलग चावल आदि लेकर आए हुए लेकिन महाराज जो है यहाँ पर महाप्रभु की चावल सेवा कर रहे हैं और उसी तरह से लगवाई चंदन का गोल चंदन मिश्र चंदन और आदि सुगंधित पदार्थों से मिश्रित जल आदि की व्यवस्था यहाँ पर करते हैं शब्द विभाजन इतना सुंदर यहाँ पर होता है कि कभी भी किसी के भी मन में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं लगा इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे समक्ष है कि महाराज स्वयं तीनों रथों को सोने की वाली झाड़ू को पकड़कर बुलाते हैं चावल के बाद अब देखिए यहाँ पंखा चला जा रहा है और एक के बाद एक नीतियाँ जो चेरा महाराज संबंधित है वो समाप्त की जाएंगी वे इसके पश्चात कर्मचारी आप देख रहे हैं कि प्रगति की जाती है उसमें कर्म की प्रगति जो है बाहर आ रही है पूरे क्षेत्र में जब हम जाएं विशेष करके यात्रा के दौरान तो एक बहुत ही अद्भुत बहुत ही अद्भुत सुगंधी का रसोई हम अपनी मिलती है कहीं पर रतन की सुगंधी है कहीं पर तुलसी की सुगंधी है कहीं पर चंदन की सुगंधी है और कमल के पुष्पों की सुगंधी है अलग अलग प्रकार की सुगंधी से जैसे सारा वातावरण जो है महकता रहता है तो यहाँ पर अब धीरे धीरे एक चेरा महाराज की करने के बाद महाराज दूसरे रथ में जाएंगे सबसे पहले जो है देखिएगा चेरा महाराज की यहाँ पर समाप्त होगी किस प्रकार से सबसे पहले पुष्प का छिड़काव रथ के चारों किया जाता है उसके बाद महाराज के हाथ में सोने की वाली झाड़ू जो जाती है और धीरे धीरे सोने की वाली से उठाते हुए कदम परिक्रमा कर लेती है उसके बाद जल का छिड़काव किया जाता है और इस प्रकार से रथ में तैयार होती है और जैसे ही चेरा महाराज लड़के महाराज रथ से गुजरेंगे तुरंत पूरे चारमान डाल दिया जा रहा है पूरे जो दिए जाते हैं और उसके बाद सारी उठा दिया जा रहा है दाऊद जिनका काम है उतार लगा दाऊद एक प्रकार की सेवा है जो रथ को दिशा निर्देश देते हैं और साथ ही बुलाते हैं जो भक्त रथ को खींचते हैं उनका उत्साह वर्धन करते हैं और ऊंची आवाज में जो है हरि बोल के नारे लगाकर देखिए पुष्पों का छिड़काव किया जा रहा है और पुष्पों को उठाते हुए महाराज आगे बढ़ रहे हैं तो दाऊद अलग अलग प्रकार की क्रिया होते हैं गीत गाते हैं कहा जा रहा है कि 2-4 पीढ़ियों पहले लिखा है ये जो गीत गाते थे उसमें असली शब्द की बात करते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है संपूर्ण रूप से बना गया है असली शब्दों का प्रयोग गीतों में बिल्कुल नहीं होता अब भक्ति से भरे हुए गीत गाए जाते हैं बोली गाई जाती है और ऊंची आवाज में जितने भी भक्त हैं सभी को प्रोत्साहित किया जा रहा है रथों को खींचने के लिए और साथ ही दाऊद का ये काम होता है कि रथों को दिशा देने के लिए किस तरह जाए देखिए इस तरह से महाराज जो है धीरे धीरे उभा रहे हैं चारों तरफ और उसके बाद जल का छिड़काव भी किया जाएगा और ये परंपरा पूरे विश्व में जहाँ कहीं जा रहा हो जहाँ कहीं जा रहा हो वहाँ पर ये तरह का आनंद सारा रूप से जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो प्रशासन वगैरह होते हैं जगह वो इस कार्य को संभाल रहे हैं कोई समाज कर रहा है तो समाज के जो मुखिया होते हैं वो चेरा महाराज करते हैं कितने अन्य भाव से देखिए महाराज यहाँ पर चेरा महाराज कर रहे हैं और उनके सफेद वस्त्र जो है हर तरह के राग द्वेष आदि से और अपने राजसी ठाट बाट और जो वचन है राजा होने का उन सभी से दूर श्वेत वस्त्र जो कि संपूर्ण रूप से सत्वता रही है सात्विकता रही है सात्विक भावों से भरे हुए निश्चल भक्त भाव से भरे हुए विविध भाव से उन्होंने चेरा महाराज की है और उसके बाद अपने दूसरे रथ पर जाएंगे और यहाँ पर महामहिमा राष्ट्रपति द्रौपदी
ऐसी कितनी और बातें हैं जहाँ पर जिनको देखकर सुनकर हम रोमांचित होते हैं, गौरव से दिखते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। नवकोटि कमनाथ कलवकेश्वर विराधी और क्षत्रिय मूल भूमि के संग्राम सहस्रबाहु श्री गजपति कृष्ण महाराज वर्तमान तालतंत्र पर सेवा दे रहे हैं। महाप्रभु की साक्षात परम और प्रधान सेवक है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के प्रधान सेवक भी चंदन जल सिंचन कर रहे हैं, चारों तरफ चंदन जल सिंचन कर रहे हैं। कहा गया सेवक सेवक विनु भव नदिय उदारी भदो राम और पंकज सिद्धांत विचार। ये निश्चित रूप से सेवक सेवक भाव से भगवान की परम सेवक प्रधान सेवक सेवा दे रहे हैं। इन्हीं का कहा गया राजगुरु शरण शरण शरण्य मौमणि कोटि नृपति वरण्य मानकलहारी संभावन चरण गुरु दृष्टि करते नरवरण वही हिंदू जग के सरदार नृपति मणि श्री गणपति महाराज। ये नृपति मणि हिंदुओं के साथ है, सरदार है। ये आज सेवा दे रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी के विजय काली विजय विदुर बन रहा है, विजय यात्रा है, इसलिए विजय विदुर बन रहा है। और कह रहे हैं भगवान के भक्त कि प्रभु ये विराट सृष्टि गगन धरा करे चराचर तेरी वंदना, मेरे तत्वदर्शी प्रभु की सभी कर रहे हैं उपासना। ये जमीन तेरी नित्य तेरा अंतरिक्ष में राज है, तू ही दाता तू ही माता तू समस्त दाता विराज है। मेरी राजा नहीं आपकी राजा विराज है प्रभु, आपकी राजा विराज है। नहीं उससे पहले था कोई भी, तू ही आगे तू ही अंत है, तू हर एक बात से बात पर तेरी विकता को अनंत है। पुष्पा हुआ ये कल्पनीय विराट सृष्टि प्रसार में प्रकट हुआ ये निकट गई मेरी आत्मा की पार में, मेरी आत्मा की पार में आप प्रभु छिपे हुए हो। इसलिए प्रभु आप मेरे सर्वश्रेष्ठ भगवान हो। प्रभु हम देख रहे चूड़ा चंदन यानी शुद्धा चंदन डाला रहा है, अर्थात पवित्र किया जा रहा है। प्रभु चंदन प्रिय है, चंदन उन्हें बहुत पसंद है, चंदन बहुत प्रसिद्ध है। प्रभु भगवान से प्रार्थना करते हैं गणपति कहते प्रभु जाति हो जीवन तुम जनार्दन, जाति हो गौरव तुम दाति प्राणन, जाति ये थी सदा तुम्हारी थे, जाति ये सही है यातना है, जाति ये विचार तुम दोनों का कंच जग दौड़ गए जग में विचार सदा ही जाति अपनी पूर्ण भावना गा रहा है युग से मान की पाना से मान पाना यही काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी कृति आपकी जो प्रीति भक्त कृति ये युग से आ रही है। प्रभु आप निश्चित रूप से मेरे भगवान हो, इसलिए मैं आपकी सेवा करने आया हूँ और के रूप में आपके पास में पेश आ रहा हूँ। आप मुझे तुम्हें चाहिए मुझको बहुत काट बाल की सवारी काट काट बेबाक चक्र की चाह नहीं, बालों की भी परवाह नहीं, नजर दर्शन था आप लोग की नहीं था मुझको ले जाने में कर मेरे पति को ही सब जय जगन्नाथ जय कारनाथ हर राय शांति सौहार्द विश्व भटाए ये प्रार्थना करने आए हैं। भगवान की परम सेवक गणपति महाराज ये समग्र विश्व वसुदेव कुटुंबकम के रूप में सोचते हैं और भगवान की इसी रथ सेवा दे रहे हैं। आप हो आप दयालु हो मैं दीन हूँ, आप दानी हो मैं भिखारी हूँ, तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी और सच्चे बाबा की तू बाप को मुझारी। देख रहे हैं पद प्रचार करने के बाद अभी रथ परिश्रम करने के बाद फिर आ रहे हैं परिवार लेकर के आएंगे भगवान से निवेदन करेंगे जगत के कल्याण के लिए फिर उनसे विदा लेंगे। महाप्रभु जगदीश्वर जगन्नाथ के अग्रज थे कहा कहते हैं प्रभु नाथु अनाथो अनाथो मोसो मुसलमान आरत नहीं आरत या दोसो ब्रह्म तो होगी कोई एक आग होते हो आप मां दूसरा आप सब चीज मेरो कोई मोहि हाथ नहीं मानिए भावे जो जो उस पाल चरण शरण पावे। आप तो चाहे मुझे जहाँ के इस प्रकार के आपकी कृपा हो प्रभु आपकी इच्छा हो प्रभु, लेकिन आप मेरे माता पिता गुरु सका सब दी मैं तो मानता हूँ, लेकिन आप तो माने नहीं सही। भगवान अंतिम प्रणाम करते हुए इसी रस्ते में निकलेंगे और अग्रज से अनु की तरफ सेवा प्रदान करेंगे। कहा प्रभु आप इस सेवा क्यों करिए सभी मन कृष्ण पदार इंद्रो प्रभाषण से वैकुंठ गुणान वर्णने हरो हर ब्रह्म निर्माजना विष्णु शक्ति चकाराक्षु सत्करोदय। ये जो मन है केवल आपके पदार विंद निकले पूर्वभाव होकर के भक्तों की प्रणाम स्वीकार करते हुए प्रभु आप जगत के नाथ हो जगन्नाथ हो, लेकिन मैं आपके नाम से परिचित होता हूँ प्रभु आप मेरे लाभ हो या तुम हो बात हो यह सब छह मगर मैं कह नहीं सकता कि क्या तुम हो आप क्या हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारे नाम से सब लोग मुझको जान जाते हैं। मैं वह कोई हुई चीज मुझका अपना तुम हो आपके नाम से जान जाता हूँ प्रभु आप निश्चित रूप से मेरे ही प्रभु हो, इसलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। न वही प्रकट जगन मान के विभवम न याद हम नाम सकल जनकाम नाम भवम सदा काल काली भक्त नाम तरिगु जगन्नाथ स्वामी मैं प्रदान भवन में यानी मां का नहीं में आज नहीं सुनत धन मणि मां का भी नहीं में सबके समान सुंदर मणि सदैव देव देव महादेव स्तुति करते हैं हमारे प्रभु जगन्नाथ ने दर्शन लीजिए मेरे प्रभु की सेवा देने के बाद भाई को सेवा देने के बाद अभी अवसर हो गए हैं उसकी सेवा की महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जगन्नाथ के पर अभी सेवा प्रदान करेंगे क्योंकि ये सेवा अपने से ज्येष्ठ गणेश की तरफ होता है, इसलिए अभी नंदी घोष रथ पर विराजमान होने जा रहे हैं। जगन्नाथ की ये परम सेवक कहते हैं प्रभु न भोग न योग न चाहिए कुछ पूजा भी दया का सागर कहता है जिसे दया भी का देता उसके शरण में नहीं रहा है। कलयुग में श्री जगन्नाथ कहलाता आप कलयुग के नाथो आपकी शरण में आने से मुक्ति मिलेगी आपकी शरण में आने में भक्ति मिलेगी, इसलिए धर्म प्रधान मुक्ति भावना लेकर के हम ज्ञान बढ़ा रहे हैं बात बता रहे हैं और मेरी उसके चालन नहीं प्रभु ये गणपति महाराज जो ये अत्यंत ज्ञानी हुई संपन्न व्यक्ति है व्यक्तित्व धनी है कहा जाता है गणपति निश्चित रूप से महाप्रभु महान ब्रह्म है। इस गणपति परंपरा का प्रारंभ सबसे इसमें तो मात्र अवश्य है। गणपति राजा चार नाम से जाने जाते हैं श्री श्री रामचंद्र देव श्री श्री विष्णु देव श्री श्री वीरेश्वर केसरी देव श्री श्री कृष्ण देव, इस प्रकार चार नाम से जाने जाते हैं। परंपरा के अनुसार एक की मृत्यु के बाद दूसरा गणपति बाद में साथ में नया नाम धारण करते हैं उसी तरफ चार नाम बुला रहा है क्योंकि अभी इसके बाद रथ खींचने का काम और रथारूढ़ हो रहे हैं भगवान जगन्नाथ के प्रथम आदित्य सेवक
गजपति की तरह उनकी धर्मपत्नी के नाम भी बदल जाते हैं, उनके नए नाम के साथ पट महादेवी उपाधि जुड़ जाती है। गजपति सेवा अनुष्ठान करेंगे और इसका उत्तराधिकारी व कुछ हो सकते हैं। आपको बता दें कि गजपति महाराज के मंदिर प्रचार कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, इन्हें चंद्र विष्णु कहा जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ के दरबार में पहुंच गए। श्री गजपति सिंहदेव महाप्रभु हम सेवक जगत उद्धार नमो नमो तुम्हें बार बार आपको बार बार हम प्रणाम करते हैं और प्रणाम की मुद्रा में कहा गया प्रभु शिरापरा की जो सेवा है, शिरापरा टेस्ट करने होता है। हमने कहा ये हम दर्शन, राजनीति बंदराना, पुष्पांजलि, कर्पूर आरती, फिर समर सेवा और अंतिम गजन सेवा, ये एक क्रम है। दर्शन में दर्शन हमारे देव में दुर्लभ, हमको भयो अति सुलभ, आपका दर्शन हमें बड़ा सुलभ हो गया है प्रभु। इस जीवन में, इस मूर्ति लोक में आपका दर्शन कर हम खास हो रहे हैं, क्योंकि श्री ठाकुर को दर्शन जो जीवन धर्म सफल करियो, जीवन धर्म सफल हो जाता है। गजपति महाराज महाप्रभु को सर्वप्रथम प्रणाम कर ग्राम सेवक से अर्पण लेकर आशा पर प्रतिमा दिशा लेकर पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। सोने की आरती में कर्पूर लेकर गजपति की आरती करते हैं। फिर राजगुरु सोने के झाड़ू का संस्कार कर गजपति को देते हैं, जो कि इसके बाद गणना सेवक चांदी की बात में श्वेत सुगंधित सुवन भंडारिका को देते हैं। भंडारिका उसे रखी पर डाल जाते हैं और गजपति महाराज की छाव से उसे साफ कर जाते हैं। अभी देख रहे हैं आप भगवान जगन्नाथ के सामने प्रणिपात करते हुए महाप्रभु के तल सेवक चल दृष्टि जाना जाता है। विजय गुरु बदला अभी सेवा प्रदान की जा रही है। महाप्रभु आपकी सेवा करते हुए हमारा जीवन धन्य हो गया, लेकिन मैं आपकी सेवा करने में कृतार्थ समझ रहा हूँ को, क्योंकि मैं गोद से भरा हुआ आपका सत्य हूँ, प्रतिदिन हजारों अपराध करता हूँ, दुर्भाग्यता शत्रु काम और क्रोध हमें बताते हैं पर हमारा जोर नहीं करता। देव भी मुझे देखते हैं पर सहायता नहीं करते। मन में यह सोच कर मैं हमारा आंसू कि जगदीश तुम्हारी नाराज की और करने वाला है। ये रघुनाथ महाराज रघुनाथ निवार रहे थे। महाप्रभु की शरण आकर ये जगदीश शतकम एवं जगन्नाथ शतक ने लिखा कहा रोज रात को शक्ति आंसू भरो करो रोज ही में अपराध हजारो काम और क्रोध लाल शत नदावती नीच नदूर हमारो देव देवी करे सहाय विचार में भूमिदास निहारो आज इस समय में दूर रघुनाथ की लाल रात मारो आप ही रक्षक प्रभु हमारे, इसलिए प्रभु आपकी शरण में आए। प्रभु जगन्नाथ की सेवा में वर्तमान गजपति सिंह महाराज कह रहे हैं का ना निकल के बल की खन बल का क्या काम निकल की नाम है निर्बल की बल आप साक्षात निकल के है और निर्बल की बल है प्रभु, इसलिए आपकी सेवा करके हम तार होंगे। इस तरह दामाद बुला रहा है और दामाद जितनी गलती बोले जाएगी उतनी गलती निश्चित रूप से रथ खींचने का कार्य हो जाएगा। जगन्नाथ के अगर बलराम महाराज ताल दृष्टि दामाद बुला रहा है आप देख पाए उसी तरह भगवान भक्ता निश्चित रूप से भगवान भारती पाया ये भगवान भक्ता क्या है ना जो ठाकुर की आरती करे 3 लोग आके आए भाई निश्चित रूप से ठाकुर की आरती करने से पाप के भगवान की फल आया। चंदा लाल की देव का और तमाम मैं आता हूं प्रीति भगवान की मंत्र पाठ करते हुए की आरती की जाती है। निश्चित रूप से इस बात सेवा भगवान और दवा सेवा की बात अलग अलग सेवा एक बात प्रदान की जाए। देख रहे हैं आप भगवान इस रूप से नमस्कार मुद्रा में अभी सेवा के लिए तैयार खड़े महाप्रभु के प्रथम सेवक ये कौन है गजपति महाराज अभी रश्मि प्रतिशो लिखते हैं ज्ञानी गानी प्रमाण कर्मणि लोको उद्देश्यकामी गानी गानी तहानि हर हरिव देवा देवतानि कृति पीति शांति करति सरति विशेष कौगी विचाराहि वीर शेर आसु यमतुमि श्रीना ताम शांतान करति चारम संग कर संदासम ही महिनी पाठन निवेदयामि संचारम चारम सुंदरम ये चार सेवा लगे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय तांबूर भरवंदनमासं दर्शयतम् उक्ताविलंबि हेम ब्रह्मणोज्वल कुण्डलं प्रशामे समालिलं संप्रय पारंगम अद्यप्रं संप्रदानं नीलानाथं संप्रति भवति सुखं यदति महाराज तत्र अन्यसंस्कृति शिरापराशयान्ति तत्र स्थानीयभाषया शिरापरायि शब्दं शिरायितेन तत्र चन्दनं भवति एवं प्रायिष्टेन तत्र समाचरविधानं तत्र स्वच्छताया सूचकं भवति तत्र कथं स्वच्छता सर्वत्र अपेक्षते अतः श्रीजगन्नाथ संस्कृतौ स्वच्छताया सन्देशः बहुकाः वर्तते। एवं च तत्र श्रीजगन्नाथ रथयात्रा अभिधौ प्रथमसेवकस्य गजपतेः इयं सेवा अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा भवति। एवं च उल्लिखितमस्ति भागवतसंहितायां ततश्च राजा परिशोधनं च रथस्य कृत्वा परिमार्जनमि तत्रापि सिञ्चय सुराजय श्रीजगन्नाथशोधकमे देवी पुनश्च समार्जनं पूया कालसप्तस्तरं करोमि तस्मिन् काले बलुष्ठतश्च प्रतिदिनदाप्यश्चिराश्च सर्वे यानि दूरागमनपादव्या प्रधानवरदं चेत् समार्जनमि चापयति अत्र मुख्यतः प्रथमं दर्शनं गजपति महाराजः शुक्ल वस्त्रं विधाय स्वच्छताया प्रतिकं विधाय तत्र नाम्नान्ति इदानीं सः आनन्दरूपी आदौ भगवतः दर्शनम् अनन्तरं राजगतिः ततः वन्दनम् अनन्तरं तत्रत्य प्रदानं सामरसेवा अमरसेवा इत्यादि विधानं वर्तते। तदपि तत्सर्वम् इदानीं दृष्टं सुतम् च प्रथमम् अमृतस्य बलभद्रस्य आनन्ददत्ते प्रथमार्जनं भवति अनन्तरं तत्र अनुजस्य श्रीजगन्नाथस्य ते तत्र भवति। एतदर्थं तत्र तेषः सन्ति वेदसेवकाः लिङ्गसेवकाः विकाससेवकाः ब्रह्मसेवकाः प्रथमतः भवति राजसेवकस्य शास्त्रमान्य हस्तं क्षण्य तत्र प्रस्तुतो भवति। एवमेव तत्र गणपति महाराजः पुष्पाञ्जलिदानं करोति पुनः इदानीं पश्यतु समाधानं करोति महाराजः तत्र जगदाशन्ते इमं दातां प्रसारयति राजा अपि सेवकः भवति। यः राजा यः महाप्रभुः प्रथमसेवकः सोऽपि तत्र तस्य समाधानं कृत्वा समाजे इमं दातां प्रसारयति सेवां करोति नमः सेवाद्वारा अस्माकं मानवजीवनं भिन्नं भवति। एवं च गणपति महाराजः अपि स्वच्छताया वार्तां ददाति अतः प्रीतिश्रीलशिवराय बोधवाचि देवाविन्दचरणाचलकमलकं
लोकार्पणावितरितबुद्धिं वन्दे चिरन्तनं भुविदिव्यसिंहं अनन्तरं तत्र भक्तकविः यत्प्रार्थयति कथं तत्र महाप्रभो नरेषु चिराभरणसेवापि तत्सन्निधौ सकलो समानधर्मा उच्चावचो नरभेदभावनास्ति तस्मात् वेदेन्द्रप्रतिष्ठसः सन्त्र तावद्बुधाति प्रबन्धं येनवाष्टि सर्वे समानाः भवन्ति ततः श्रीजगन्नाथस्य प्रजापतिः समाजवादस्य प्रधानमूर्ति समाजवादस्य महात्मसायति सर्वे समानाः एवं च शिवानि दर्शनवन्तः प्रत्येक याचामावस्था अस्ति इदानीं श्वः प्रत्यक्षमाणः अस्ति समानं धनं पश्यति यावत् शीघ्रं समानं धनं पश्यति तावत् शीघ्रं तस्य आकर्षणं पश्यति इति भवन्तः जानन् तत्र समानमिदो जनामानिदो तत्र यः भवति वेदासेवकः सः शुक्लपुष्पं ददाति अग्रे तत्र पुनर्व्यावो तत्र भवतिपदे तस्सं प्रयति अनन्तरं आगमनसेवकः अस्ति पूर्तिसेवकः साक्षात् शुभसमानज्ञानेन संस्कारपूर्वकं ददाति गतपदे अस्ति एवं च तत्र यः अस्ति पुनर्व्यावः सः शुक्लपुष्पाणि अग्रे पदेति गतपतिभागः शुभसमानं स्वीकृत्य तदेव वैशिष्ट्यम् अस्ति एवं पुनर्सेवकः भवति सोऽपि तत्र भवतिपादे संगमस्ति तदेवादे गच्छति तत्र शिराप्राणिः अस्माभिः तत्र दृश्यते आदौ भवदर्शते सानिः विष्टावते इदानीं चिरमनसते पादं दीर्घा सुदयदेवी सानिः विष्णु अतः इयं वार्ता जगति यत् सर्वत्र स्वच्छता अपेक्षते स्वच्छं भारतं तत्र सुष्ठं भारतं सर्वत्र स्वच्छता भवति स्वच्छता एव उत्तम समाजस्य निर्माणं विषयति उत्तम राष्ट्रस्य निर्माणं विषयति अनन्तरं जगन्नाथमहाराजः तत्र भगवते प्रार्थनां विषयति जगतः कल्याणाय तस्य प्रार्थना सर्वे प्रजानः सुखिनः भवन्तु जगतः कल्याणं भवतु विश्वस्य कल्याणं अहमत्र भगवन्ते सामान्यमिच्छामि रथयात्रा स्तोत्रं वर्तते दीनदीन महाराज तत्र अपि तते भगवतः स्तुतिं कुर्वान् जयनिधिः इति इन्द्रदिनं इदानीसादाः विजयसर्वनाः निजामपमति तत्र इन्द्र महाराज शिवनाथस्य प्रार्थनां আর এই সময় চোদ্দ সমাজ লোকসভা নির্বাচনের মতো আসন্ন পঞ্চম নির্বাচনের রাজ্যভিত্তিক आदि शिवभासन्ति तत्र चन्दनवर्षे तत्र पुष्पपुष्पाणि प्रति अनन्तरं तत्र আর এই সময় সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের মতো আসন্ন পঞ্চম আর এই সময় সদ্য সমাপ্ত লোকসভা पुरुषोत्तम नाम श्रेष्ठ श्रीधाम श्रीपुरुषोत्तम नाम दारुदेवता सकल पुरविहारी शरीरथ सञ्चारी पुरी राजपथे प्रतापी दादा निखिल श्रीराम जगन्नाथ स्वामी जय पुरुषोत्तम महाप्रभो श्रीपुरुषोत्तमस्य प्रजातायाम् आद्यसेवकः भगवती दीर्घसिंहदेवः सन्तति तत्र श्रापराशिनां रसमर्दनसेवां विदधाति वयं सर्वे आनन्देन पश्यामः कथं तत्र लौक्यपात्रः सुशीलं तन्नरसेचनपदं चुरं स्वादविकारस्य स्वादविधिरे इति वयं गौरवामः आद्यसेवकः श्रीजसिंहदेवाय नमो श्रीगजपति महाराजाय प्रतत्रयमाचराय गर्वाहङ्कारनाशाय राजवेश सुशोभित प्रणतकाय वाञ्छितमङ्गलहृदय शनः समादरीकर भगवान् तत्र जगति स्वच्छतायाः वार्तां प्रसारयति सर्वे स्वच्छा भवन्तु सर्वत्र स्वच्छता सम्पादनं भवतु एवं भगवतः श्रीजगन्नाथस्य कृपां सर्वे प्राप्नुवन्तु अतः जगद्वासिनां तत्र कल्याणाय जगद्वासिनां कल्याणान्वितं जगति महाराज भगवते प्रार्थनां वन्दे तत्र अवश्यं सः भगवतः रामापं ध्यास्यति तत्र अन्यत्र तत्परते अष्टाङ्गमन्दिरे एवमेव भगवतस्य आर्द्रदेवी तत्र अष्टाङ्गमन्दिरव्यवस्था चलति निवसते जगति महाराज साधुसेवां ददाति एवं तस्य साधुनिधिरे स्थानीयभाषया प्रभाषया शिरापराशवायिनी बहुपूर्वं श्रीक्षेत्रे इयं शिरा प्रचलिता आसीत् प्राचीनग्रन्थेभ्यः ज्ञातुं शक्यते पूर्वमपि भगवती महाराजः प्रकाशिते तत्र बलिः देवता आगतस्यानि पश्यामः अस्माकं भारतवर्षस्य महामान्य राष्ट्रपतयः सन्ति तदयात्रायाः अवलोकनं कुर्वन्ति एवं अन्येपि मन्त्रिणः सन्ति तारकाः सन्ति प्रतिष्ठानाः सन्ति सर्वे तदयात्रायाः छन्दसं कुर्वन्ति इदानीं वयं पश्यन् अस्माकं राज्यस्य मुख्यमन्त्रीमहोदयः अत्र छन्दस्थाः सन्ति एवं तेपि तदयात्रायाः अवलोकनं कुर्वन्ति अस्मिन् सन्दर्भे कविः एवं प्रसिद्धः संस्कृत कलालयः पाणिनिपण्डितः लिखति चिन्तिधारावर तन्ननन चराचराधीश जनजीवनन प्रभो भवनानिधान तव पदतले विगसतुमन विराजते सुसज्जितो नदीवसरत जनाकिं भवति विस्तुताजपत तव जय जय गनि प्रसारित प्रकम्पते दिविलामेदिनि प्रियते सेवकनि पदतिन्दन आसक्तिन्दनं श्रीचोभन भक्त मासन्दन प्रतारवती रमा उदयचन्दन एवं महादेवनः महाप्रभु श्रीजगन्नाथ नन्दीवसरनाथि एवं च जगत्पथाराज तथाजनं ददाति जगत्पथाराज प्रधानं भगवते कारणमोदि मनसिन्देहि एको जगन्नाथ अस्माकं अन्य एकमन्त्रः अस्माकं राष्ट्रस्य पूर्णांशः नागरिकाः मन्दिरः सर्वे संस्थाय तत्त्वस्थाय सत्यालयाः अवलोकनं कुर्वन्ति अत्र प्रार्थयते जगन्नाथं प्रति रथे विद्यमानं महाब्रह्मकृते ब्रह्माण्डं
यस्मिन्नं निगमगणनं ज्ञानात्मरूपं अन्धसमराचक्रं भगवद्गीतं पूर्णब्रह्मादितीयं साधुप्रेमादिप्रभुतीयं साधुकर्ताविजं साधुकारुणं बुद्धिरसकरं कारुण्यमीडे जयगणनाथ किसी को भी ये नहीं कि वो विश्व से प्यार करने वाला जैसे हमारे लोग भी राष्ट्रपति हो गया कितनी विनम्रता से देखिए वो दोनों हाथ पर करके मेरे ऊपरी शरण करके प्रणाम करती है और फिर विश्व प्रणाम करते हुए यही है हमारी भारतीय नारी सीमा वो इस तरह से चाहे वो बड़ा में हो जाए घर में हो जाए या मेरे को यहाँ देवालय में हो भगवान के आगे नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं वो नहीं देखती वो किस पदवी में वो नहीं देखते महाराज गजपति महाराज के लिए वो नहीं देखते वो किस पदवी में है छत्रपति है या गजपति है या राष्ट्रपति है वो अपने ईश्वर के आगे सभी एक नए प्रणाम करते हैं और इसी को लेकर जैसे ही हमारी गौरव में परंपरा की रक्षा करती हुई माँ स्वरूपी राष्ट्रपति महोदया जिस तरह से प्रणाम करके जा रही हैं हम लोग होते हैं जिस तरह से एक माँ प्रभु को पुत्र के रूप में देखती है उसी तरह से ये दिखता है यहाँ पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी राष्ट्रपति महोदया के साथ या जैसा ही प्रोटोकॉल होता है राष्ट्रपति महोदया होती है उनके साथ राज्य मुख्यमंत्री अन्य केंद्रीय मंत्री सहते हैं उसी का पालन करते हुए वो उनके साथ हो रही है पूरी तरफ जलमची हुई है भक्त संबंधी हमारे किसको देखें तो देखें यहाँ भगवान को देखें रथ अभी रूप में है लेकिन अभी तक वो चलने नहीं शुरू हुए इससे पहले जो इंडिया है पहले हमारे शंकराचार्य जी आए विश्वनाथ महाराज जी आए उन्होंने प्रणाम किया उसके बाद गणपति महाराज जी आए जैसा कि पहले हमारे में बोला गया है जैसे आपको लगा जो लोग हिंदी भाषी हैं तो उनका भाषा के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि प्रतिष्ठित भाषा में लेकिन उनसे कुछ नहीं वाले तो मैंने बड़ा सरल भाव से बताती हूँ 6 नंबर होता है उनका हिसाब वचन चंदन आस बसते सूर्य प्रक्रिया में कितने लोग होता है मंदिर में चंद्र का होता है मंदिर में होता है इसके बाद रथों पर जाए और महाराज स्वयं यहाँ पे गणपति महाराज आए हैं उन्हें पद्म के विवाह कहा गया है उन्हें चाहते तो राज्य आप यहाँ सकते हैं कि वो यहाँ की संस्कृति में यहाँ के लोगों के जल्दी विश्व के प्रतिमा नाम से होते हैं इसलिए उनको पद्म का विवाह करा गया है तो अपनी एक छोटी सी बात कहीं पे कोई आलिशानता कहीं पे कोई आडंबर नहीं कब्जा में जा रही है वो बैठकर वो तीनों रथों की जब रथ की पूजा की और वो अपने अपने कब्जा में बैठकर वापस जा रहे हैं और इसी बीच में कहीं पे कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं हुआ है ऐसा नहीं भक्तों को कर दिया है इसी भक्तों के समंदर के बीच में राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदया केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और उनके साथ दूसरे उप मुख्यमंत्री जो है वो सभी उनके साथ जा रहे हैं यहाँ पर कहीं भी कोई भेदभाव किया जा रहा है सुरक्षा की दृष्टि से कुछ भक्तों को कुछ कष्ट हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें विशेष कॉरिडोर बना दिया गया है और इस पर लड़ने की व्यवस्था की है क्योंकि भगवान के साथ सभी समान है और यहाँ पर सभी दर्शन करते हुए अपने अधिकारियों के साथ वो वापस जा रहे हैं और टूटी पता है रथ चलने की पूरी तैयार है और यहाँ पर छुट्टी नहीं था मंदिर के अंदर से बाहर मंदिर से होती थी रथ हुई है वो सभी समाप्त हो चुकी है जो मंदिर की जो चेहरा बना रही स्वयं गणपति महाराज ने की और उसके समाप्त होने के बाद स्वयं हमारी राष्ट्रपति महामहिम महोदया योगी जी वो स्वयं जीवित तैयारी उनसे भी और यही विशेषता यही विनम्रता यही विनयता उन्हें बहुत ही श्रेष्ठ बनाती है एक संभाल से आकर इतनी ऊंची पदवी में आने के बाद कहीं पे कोई अहंकार नहीं कहीं पे भी उनके चेहरे पे कुछ इस तरह नहीं है कि देख के बता सके वो उन्हें जी उनके पे है सारी दुनिया के लोगों सारे विश्व को उड़ीसा की इस नारी से सीखना पड़ेगा इस संस्कृति से सीखना पड़ेगा यहाँ पर नारी और विश्व समान अधिकार किया जाता है वहीं महाराजा कोई राजसी वस्त्रों में उनके कोई आडंबर नहीं है कहीं बात नहीं करेंगे वो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं श्वेत वस्त्र जो होते हैं वो पवित्रता कर होते हैं हमारी गगन बुद्धि हमारी वस्त्र है वो भी अपने रथ का आनंद लेते हुए सभी लगता है कि हम ये सभी न कर पाए कहाँ पे भी तो इसके अनुमति मिले कोई सुविधा मिले तो सब प्रभु जाकर अपनी क्यों ना दे पाए क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहा गया है रथस्य वाणम मिश्रम गुणगणम आरभ्यते इस संकल्प कहा गया है वाणम मिश्रम गुणगणम आरभ्यते कि हम विश्व में जन्म नहीं पाया अगर हम रथ के राज अगर हम प्रभु बोले तो हम जन्म के इस चक्र से हमको मुक्ति मिल जाती है सभी विधि खाते हैं हम सब सागर से पार है और ये विनम्रता का संदेश देते हुए स्वच्छता का संदेश देते हुए स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत जो नारा चारों तरफ है महारानी ये करके दिखाया गया है लोग तंत्र कैसे चलता है करके दिखाया गया है जहाँ पे राजा स्वयं हाथ में सूख है चारों से की मुक्ति है बराबर बराबर मारना चालू लगाना और चलन से चलन को चलते जो हाथ लगा के चेहरा पर करते से पूरे विश्व में ये एक नया चाहते हैं बताना चाहते हैं कि हमारे देश में सभी समान है जैसे कहते हैं कि दुनिया भी हमारे राजा तो हम सभी राजा हैं सभी राजा सभी यहाँ पे प्रजा राजा की कोई भी जो बंधन है जो सीमाएं वो दूर है प्रभु के आगे सभी समान है सब दृष्टि से देखते हुए प्रभु तो यहाँ पर राजा के साथ जो जाते हैं इनका भी स्वास्थ्य मंदिर में अपने राजा के बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं नीतियां होती हैं स्नान करके नए वस्त्र हर वर्ष के पहले वापसी और राजा के बाप के सारे वस्त्र बनाए विशेषता के सभी सफेद पट्टी पर लगाई जाती है और कमर टीका चाहिए हाथ में तो बाजू रखते हैं लेकिन ये बात से दूर के किसी तरह के अपना दम प्रकाश करने के लिए कहीं एक प्रतिष्ठान में होती है अपनी छोटी सी पानी बैठ के आ रहे हैं यहाँ पर नवयुवक देखिए आपने प्रतिष्ठान देख सकते हैं नहीं इनका फैशन है लेकिन वही नाटक हमारा अपनी संस्कृति लेकिन उनके प्रतिष्ठान अब सभी मिलकर हाथ में छोटे छोटे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कहते हैं कि कौन आधुनिक वर्ग है या वो पुराने दिखा रहे हैं नए पुराने सभी इस तरह से जो कुछ छोटे कार्य कर रहे हैं जो विशेष पहने हुए हैं उनके साथ जो मंडी है उस सबके साथ मिलकर ये नृत्य कर रहे हैं वहीं पे किसी नृत्यांगनाएं वहाँ की परंपरा शैली साड़ी और हिंदी और उसके अंश रहेंगे तो सब चीज़ों में मिश्रण है यहाँ पे आधुनिकता परंपरा पुरातन और नूतन सभी का मेल हो रहा है तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस संस्कृति सबसे चेहरा बनानी एक सार्वजनिक परंपरा शेष दिखाई है वहाँ पर जो चार हमारे जो रैंप बना हुआ है जिसके ऊपर से ऊपर ले जाकर उसको धीरे धीरे दिया जा रहा है और हर रंग में 4 अश्व ताकतवर अश्व जो आप देख सकते हैं कितने विशाल रथ महल होने का क्रम देखते हुए और इसके ऊपर हर गली कम से कम 200 से 300 सिपाही अधिकारी सब मौजूद है
हम कल्पना भी नहीं कर सकते लकड़ी की एक ऐसी संरचना जिसके ऊपर 200 400 से अधिक 500 से अधिक खड़े हैं, नीचे के तले ऊपर के तले खड़े हैं और किस आस्था के साथ खड़े हैं और किस बल के साथ खड़े हैं और उसके बाद वो इस प्रकार से इस रथ को सिर्फ वही आश्रय जहाँ अर्श उसको उससे दूर के लिए जाए ये कोई चमत्कार नहीं हुआ क्या है कभी देश में डिक्शनरी में सगर नाम लिखने में चमत्कार लिखने के शब्द नहीं था तो उन्होंने फिर रथ का दिखा देखी तो उन्होंने उसका नाम जमा कर दिया ये सुन है जो इस तरह से बता रहा है जिस तरह से के में चलते आगे बढ़ते हैं और हजारों लाखों लोग दसवें में नाम करते हैं ऐसा दुनिया में हो सकता है इस तरह से करने का नाम बढ़ा और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वो चीज है इसी तरह से में जब चलना आरंभ करेगी जब आगे बढ़ना आरंभ करेगी तो लोगों में जैसे जोश बढ़ जाएगा उन्हें लगेगा कि प्रभु से उनको यहाँ से आगे ले जाना है तो चिराग पकड़ के बैठी अभी दर पे लाल काला हम सब ये देखते ही बैठना चाहते हैं हमारे माँ हमारी शक्ति माँ सुंदर करते हैं तो शक्ति का करके और आज हम छोटी बहन कर चल बहन कर लारी से बहन कर इस रथ पे सवार है ये हमें एक सूचना दी है एक संदेश दी है ये प्रतीक है कि नारी और पुरुष का समान है आजकल लोग कहते हैं कि कानून में बहुत सारे औरतों को डाल रहे हैं कि ताकि संपत्ति में भी माना है हम लोग पूछ रहे हैं डुबो पहले खुद का सरस्वती नारी को रत्न सिंहासन में अपने भाइयों के साथ समान अधिकार और आज हम इन्हीं अधिकारों को देते हुए मिलेंगे समाज की हमारे अधिकार हैं तो इस तरह सैनिक बल सीआरपीएफ के जवान पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करने में इतनी बड़ी हफ्तों के का नियंत्रण करना एक बहुत कठिन कार्य है अगर आप ड्यूटी हायर के से तो 4 दिन पहले देखेंगे सारे अधिकारी फॉर्म का नहीं आएंगे यूनिफॉर्म पहने हुए ताकि उनको पता चले कौन किस अधिकारी है हर सैनिक अधिकारी है लेकिन सभी बिना जूते चप्पल के मां बड़गाड़ से मंदिर की तरफ आईसीयू पार ऊपर नीचे रखा सब जगह भागे होते हैं और अपने ड्यूटी को बहुत मुस्तैदी करते हैं तो ये उनकी आस्था है ये उनका विश्वास है और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में हर परंपरा बहुत ही गौरवशाली रही है जैसे महाभारत काल के पश्चात पवित्र भारत में जैन युग आया बौद्ध युग आया और इस युग में सब भी हुआ आरंभ हुआ जैन धर्म का और बौद्ध धर्म से बौद्ध धर्म का जैन धर्म का कार्य अनुसार जो ऋषि है जो श्री प्रभु है वो जिन रूप में गिरफ्तार हुए और बौद्ध बौद्ध जो है जो ताकि अंतर क्या विश्वास के लिए सातों ऋषि जगन्नाथ को श्रेष्ठ राजा के रूप में पूजा और उड़ीसा में बहुत चीज हमारे राजा के राजा की अधिकतम परीक्षा कर रहे थे शांति को पूरी एक तंत्र में पूरा है और श्री भद्र को बारह रूप देते हैं और श्री भद्रा माँ को विदेश में देते हैं और श्री जगन्नाथ को दक्षिणा कालिका रूप में देते हैं तो देखिए चार यही भावना जैसे विभिन्न संप्रदाय विभिन्न धर्मों के लोगों ने विभिन्न रूप में लाए ताकि सारी चीजें हमें जो दिखने वाली है सभी यहाँ पर जो लाखों में संख्या लोग हैं गांव की विचार है वर्ण है वो सोए हैं गाय है और ये जो तीनों भगवान निकल हैं तीनों की सदा वर्ण की और शाम वर्ण की जगह और शिव वर्ण की मतलब ये पूरी दुनिया में हम जितने प्रकार के जितनी नस्लों के लोग हैं वो गोरे हो या हमारे हो या जिसको हम लोग कहते हैं चाइना में सबको आज हम विदेश में जाते हुए कहते हैं ग्राम क्या लोग तो इन तीनों के विकास है जो जितनी नस्लें हैं विषय जितने भी रंग हैं वो इन तीनों का प्रतीक कर रहे हैं और ये रथ अभी ये चैन रथ हो रहा है या रथ विग्रह हो रहे हैं हमारे प्रभु हो रहे हैं या भक्त हो रहे हैं या उनके अश्व हो रहे हैं ये समय आएगा लेकिन सभी के मन में इस रथ यात्रा को देखने के लिए सभी खुल है ये धीरे धीरे उसका की गुरु का बड़ी कर रही है बताया था कि अपनी जो है पहले बता चुकी हूं कि हर सब लोग अपनी सब करी ही होगी बता प्रभु हर सब में बैठे रहते हैं उनका उपचार होता है पूरे साल का तेल और तेल जो है वो सब जो से उनके जिनके अंदर बैठे बांध के रखा रहा है और जब प्रसन्न उनको देख आकर नमस्कार करें उनके बुखार उनकी बीमारी को दिला जाता है कहते हैं फुलेरी और उससे उनकी देख जाती है जब पहले 5 दिन जब नहा के आते हैं उन्हें ये वस्त्रों को उठाया जाता है ताकि उन्हें ठंड लगे इसको कहते हैं बदल जाता ताकि उनके ऊपर जितने बंधन है जितने कपड़े डले हुए हैं जितने भी उन्होंने पहने हैं सबको निकाल के रखा जाता है उसके बाद धीरे धीरे करके उनके बदल तक बहुत ही उदासी उस समय उस प्रसन्न गृह में जो कि वही पड़ाट बार जब बार बीच में बनाया जाता है उसके ऊपर अपने डाला जाता है और उसी का में वो धीरे धीरे करके धीरे तक इनके ऊपर जो सुंदर तेल है चंदन का लेप है फूल का लेप है कुमकुम है उसको धीरे धीरे डालना है और उसकी यहाँ भाषा में कहते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे उनके ऊपर नवे और सफेद में फिर से इस तरह से शरीर में रक्त प्रवाहित होता है ऐसी वजह चलती है और यहाँ जल प्रवाहित है उसी तरह से फिर वो पशु युक्त तेल है उसको लगा के पहले मार को ठीक करते हैं उसके बाद फिर से ऊपर चंदन और इसका लेप लगा के उनको फिर से प्रवेश करते हैं और उसके बाद जब चौथे दिन को ठीक हो जाते हैं तब उनके ऊपर एक विशेष रंग लगा के जो लगा रखते हैं सेब है वो लगा के उनको रंग करते हैं जिसको कहते हैं बदल तो यहाँ की जो भाषाओं में बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ उन सब लोगों का प्रयोग किया है बताया गया है जो कि हम जो इस हिंदी भाषा के प्रदेश के लोग हैं उनको कभी सुनने में बहुत अजीब लगता है इस तरह लेकिन जो धीरे से सुन के इसको समझने लगते हैं तो उनको लगता है ये प्रक्रिया सब कुछ होती है और जो चांदी के पात्र में काजल देते हैं चांदी से लहू से जब हमारे को हमारा काजल लगाते हैं उत्सव नवयुवन आज का दिन बहुत ही शुभ है बहुत ही अद्भुत योग है क्योंकि आज के दिन मेरे उत्सव नवयुवन और दर्शन भी आप उसके बाद मंदिर आज के दिन और लड़का शुभकाम किया जा रहा है कई वर्षों में कई 50-60 वर्षों का संजोग बनता है और ऐसे संजोग को देखने के लिए केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री हमारे महामहिम का गवर्नर महोदय और हमारे तीन गौरवशाली हमारे राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी सभी उपस्थित हैं और सभी शुभ मुहूर्त का आनंद ले रहे हैं और उसके साथ देश विदेश से आए हुए गाँव से आए हुए जितने भी लोग हैं और दूसरे शहर से आए हुए दूसरे पास देश से आए हुए सभी इस अद्भुत जाएगा और बहुत भाग्यशाली है महामहिम राष्ट्रपति के जो अधिकारी हैं सुरक्षा दल ने भी इस अद्भुत बड़ा लेने का मौका मिला है गवर्नमेंट के साथ जो है ये जब मंत्री सभी सरकार करते हैं अपने साथ बड़ा लेके चलते हैं लोगों को साथ में लेके चलते हैं तो उन सबके भी भाग्य में प्रभु के दर्शन हो जाते हैं और इसी दर्शन के लिए हम लोग सब लोग कहते हैं आजा राजा मन नहीं कर तुमको याद रथ के सवार हो चलो हमको ले चलो अपने साथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ Just release on the
ritual and the ritual that is going on the chariot of the Shubhara and Padana. Then the floor of the chariot, another hand of the people, including the Pukesa, where the Maharaj. Patri is there, Barabu is there, Barabu who holds the box and the Kaliya who holds the trumpet, and Patri who sprinkles the water on the white glass when the Maharaj is to issue the floor of the chariot. And then Barabu prepares the scented water. And right now, on the floor of the chariot, around the canopy of the Shubhara, the swimming is being done, and the Puruli, when the room is not being used by the Maharaj, so he is asking and getting the room, and the room has a handle of gold. And the Kalapa, who hold the libraries as a hand also, because they are also essential in the relative rituals, when they take the beginning, all these prayers and orations there, and follow the rituals there. And also the Padhari and the Lita servers are also there, not only servers, they are also accompanied. And this is the crowd that can take everybody is witnessing one of the highlighted events of the function of the Maharaj, the Holy Spirit by the Holy King of Puri, Bhagavati Maharaj. And some amount of activity is definitely there, but the sky is clear and not very raised. But in the morning, we had the sky partly clouded, but now it's all clear. And it is believed that there will be a lot of parades when the chariot along the Grand Avenue. And the background is the 12th century edifice. And the piece of gold building that is sitting at the temple teaching, and it is a famous teacher where more than 200 burners are here. And here, the holy food is prepared and it is known as the prasad. And when the prasad is offered to the Lord, after that part of that is taken to be offered to Ganesh Vimala, that is the position of Maharashtra. Here, everything at its schedule. The prasad is Maharashtra, the temple is Grand Temple, and the road is Grand Avenue. And the evidence of the Lord. The servitors, they are also Bada. So everything takes schedule. And here, the Ganesh Vimala is offering these patients, holding on to the 5 weeks, and also the camp of the night. And Ganesh Vimala is magically attacked the meat in all regalia that is symbolic of his position in the hierarchy of the rituals. There's no way amounts to self-glorification, no way it should be understood as self-glorification, because he is understood to be the living incarnate of Vishnu, and at the same time, he is the foremost servitor of the Lord, and he holds the individual service that cannot be substituted. Of course, when there is an exigency or he is unavailable for rituals, then he is appointed representative Buddhasta comes to another. Of course, Buddhasta comes to the temple to follow the rituals of the year, on the special occasions that the Maharaj himself comes and takes part in that. Here, and before that, the Snana Utsav, or the Vedic festival, and the Maharaj had also come to offer his services. And also the return festival, he used to offer his services similarly the type of services that we find today. And he has completed his rituals here, and there he waves and offers prayers for the mankind to have blessings of the Lord Almighty, waving and returning to the greetings of the living manages the way he carefully stepping down the next ladder to light on his Ramjan and to make an exit to his royal marriage known as Srinath. Earlier, the Maharaj and family they used to live in Pakistan that is about 1 kilometer away from the southern gate, the southern entrance. But after coming out of the British started building the temple of things. They advised the Maharaj of the king to live in the closest proximity in the vicinity so that he can have better administration and better management, because he was the president of the temple administration. And he is also a part of the coordination committee that is held 4 times for the preparation of the festival. On the last coordinating meeting, the chief minister of the state, he himself attends all of the officials, the representative of Chhattisgarh or the formation of the different services. They are also here, including the people from the race and also this administration and temple administration. This is how the royal procession is happening among the people to the garden on which way to Srinath. This is a central part of the Jagannath culture. Odisha was the last piece of land free against the British that happened in 1803. While crushing the Viking rebellion, the Vikings, the family soldiers of Odisha, they were the Vikings, and that's last actually. It's a community, a very large community, and they opposed and put up a formidable position to stop the British from coming inside. So 1803 was the year, that was the year the Viking rebellion was crushed by the British with the diplomacy of the British. And then after the British divested the king of his territory, because he was holding the last tract of land and the last territory on his day, and he was stripped because he supported the Viking rebellion, and in retaliation the British stripped of him his territory. But he could not, the British could not dare to muster the courage, or he had the courage to strip him of his position or the association with the temple, fearing that there would be a public uprising. So this is the way the British had to accept the position of the Deputy Maharaj, and he was allowed to continue as the temple superintendent, and this is how it happened. Until the government took over in the 1960s, and he is Her Excellency, the President of India, Mr. Draupadi Murmu, witnessing the movement of the passage of the Deputy Maharaj exiting to the palace. Today, he has no kingdom, he has no territory, he has no power, but still people treat him as the king of kings. So that is the amount of respect, because he is understood to be living incarnate of Vishnu. And that is why people respect him, and not a single word against him, not a gesture against him can be tolerated by the people. So that is how he enjoys the love, appreciation, respect, and devotion of the people. And this is the ceremonial procession. And the Tarasas, 6 Tarasas and 2 Chhatris, they are part of the entourage of the Ganesh Maharaj. And the President of the Maharaj is using a foot. And he has no army, that's fact. He
He has, but anything against him is not taken lightly, because that is the respect that he enjoys from our so much, so respected he is. When he goes elsewhere, people are treated respectfully, and he is understood to be strong Krishna, or the living incarnate, and living incarnate of Lord Jagannath, and Lord Vishnu, because Lord Vishnu is not separate from Lord Jagannath, and this proves nothing less than the theoretical divine might of Krishna. Despite many invasions in the past, Gajapati Maharaja of Puri has been there, really his belief to the Lord, a tradition continuing even before the present 12th century embraced him. Gajapati Maharaja is not just a human being, but an institution by himself, and he is as old as the tradition of Jagannath consciousness. This is the and this is how the worship of Lord Jagannath is slow, and his presence is most sought after in every person and individual. The sweeping of the chariot that we witnessed just now has the underlying message that all servants of Lord Almighty are His beloved and chosen people. The tradition was never started for self-glorification on the theme of the protection of an individual in that life. This is essential in Indian culture or that of Odisha, and has always shown light to others down the centuries. He is an educated gentleman, he is a gentleman by all his position, educated at Rajman College at Raipur, and later prestigious in Delhi, later able to not based at the University of Chicago to get a master's degree in law, before he practiced for some time in the Supreme Court of India. And there, while practicing, he told me for that I had to offer a rather great practice there before him, and he left his practice as a practice that he used to have then and returned. And this is how the top officials and His Excellency the President, His Excellency the Governor of Odisha, the Chief Minister of Odisha, they are moving down onto the Grand Avenue to pull the chariot because the rituals of the rituals are over, and the gates, 4 gates of 50 meters each of 4 meters, they will be tied together to the chariots and they will be pulled. So, for the dignitaries, they are making a round of the chariots inside the inner curtain, and after that, they will partake in the pulling of the chariot, and this is how the Gajapati Maharaja is making a visit to the Srinagar of the Royal Palace. Because this marks the end of the rituals on the chariot or around the chariot. And making the way for the pulling of the chariot, that is the most important part of it. And all the dignitaries they are mixing with common people. Here, everybody has come to pay the obeisance to Lord Jagannath. And every time, the dignitaries are being greeted by the devotees all around. And here everybody is equal and all are equal. And this is the symbol that we find. So the equality is the underlying message of Jagannath consciousness. That is there. And we look at the highlighted designs and the contours of the chariots. All the chariots are made as per the rituals available in the guidebook that is followed for hundreds of years. That the main chariot, or that is the chariot of Lord Jagannath, always called as an Nandi 16 wheels. And next to that, the chariot of Lord Radha is got 14 wheels. And the chariot belonging to the Rajeshwara has got 12 wheels. They are all symbolic. And the bearing is also symbolic. And the yellow bearing on the chariot of Lord Jagannath, that symbolizes the color of Lord Vishnu. And green, or the bluish green rather, it's not a complete green, it's bluish green that speaks about the greenery of the vegetation. And here in the background we find the vegetation or the greenery of Puri. Puri is the only town which is full of coconut trees, and from coconut there are coconut industries also. Some beautiful manufacturers are also made using the coconut, the coconut coils also. Even the coil is used. There is a body that is called the coil of Odisha. They prepare these required cables, 4 each for each chariot. Of course there are some extras for extensions. There are 50 meters each. So 12 cables of 50 meters each, they are tied to each of the chariots to be used by the devotees. Actually, very few devotees actually get to pull the chariot because they are not trained enough to pull the chariot. Even in the Buddhist course, they are trained enough people to pull the chariot so that there is no untoward situation, there is no accident that happens. And this is how Excellency the President of India, who is exiting after making a round of the chariots. And after that, you can see even on his day, this is how the passage of the President of India is made. And along with her is His Excellency the Governor of Odisha, and this is how they are here. And after making a complete exit from here of the Lion's Gate, in the meantime, the horses are being blocked and the wing of the chariot will begin, and then the navigator will be there, and he will be signaling, and the ground control will be there, the police force, they will be leaving no stone unturned to secure the security of the people and also the movement of the chariots. In the big steps, the President of India, and we get further, it's now the time for India. संपूर्ण रूप से तैयारी सभी प्रारंभ होने वाली है। महामहिम राष्ट्रपति एवं जितने भी विशिष्ट व्यक्ति हैं वे सब रथों की परिक्रमा कर रहे हैं और रथों की परिक्रमा कर रथ में लगे हुए जो रस्से हैं जिनको पकड़ रथ खींचा जाएगा। जगन्नाथ जी के रथ का जोड़ बलभद्र वासुकी एवं सुभद्रा का बलभद्र जोड़ इन रथों को खींचने वाले इन रस्सों को छूकर उनका स्पर्श करके यहाँ पर आकर विराजमान है प्रतिनिधि विशिष्ट विराजमान व्यक्ति हैं यहाँ पर जिसमें महामहिम राष्ट्रपति सर्वोपरि और उनके आने के बाद अब रथों को खींचने का जो उपक्रम है वो प्रारंभ हो चुका है। अब धीरे धीरे रथों को खींचा जाएगा, आगे ले जाएगा और रथ यात्रा अपने आप में मनुष्य की जीवन यात्रा को भी घोषित करती है। किस तरह से निरंतर गति से बढ़ते रहना ही जीवन है, इसका संदेश देती है। अब ये याद है जो आपके बने से हुए हैं। अब जैसे ही आज्ञा हो, अब ये रथ को आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए पूरी
वे में अब सबको सुंदर तरीके से सजाया है, उनके आभूषणों से अलग कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब उनके भक्त उनके दर्शन है। और देखिए सबसे पहले बलिदान का रंग आगे और कलश में और उसके पीछे पीछे मास्टर का रंग एवं सबसे पीछे वो है महाप्रभु जगन्नाथ जी का रंग। अब इन भक्तों पर ही इनकी समस्त रीति इनके जितने भी लय चाल हैं वे सभी लोगों के ऊपर यहाँ तक कि वो आगे भी यहाँ पर करते हुए बदल रहा है। जब बहुत बार आती है तो जैसे ही पहले बताया जाता है कि सबसे पहले भी 10 वर्ष के लोग खाकर निकलते हैं, उसके बाद जो है नाना प्रकार के और भोग हैं जो चढ़ाए जाते हैं और उसके बाद खाने हुए भोग खाने के बाद कर जाते हैं। वो प्रसाद और महाप्रसाद में अंदर है ये देख सकते हैं वो मंत्र संस्कार के ना रखी किए गए नैवेद्य को भोग है और जैसे ही मंत्र संस्कार जुड़ जाती है अर्थात मंत्र संस्कार के साथ किया जाता है तो वह भोग नैवेद्य है वो प्रसाद बनता है। और जैसे ही वह षड संस्कार से युक्त हो जाता है, षड संस्कार से युक्त हो जाता है, जैसे अगर वैष्णव में बताया माँ लक्ष्मी के द्वारा पाया जाता है, जिसे यंत्र पर रखा जाता है, षटकोणी सिंधु पर पाया जाता है, महाराज जिसके मन से संस्कृत होता है और माँ विवाह वार्षिक होता है। ये सारे षट संस्कार हैं। इस षट संस्कार से होने के बाद महाप्रसाद बनाया महाप्रसाद की एक है ये महाप्रसाद एक बड़े रस्सी से बन रहा है। ये कुल मिला के जिसमें 140 चूल्हे हैं किसी बड़े चूल्हे जब महाप्रसाद बन रहा है या वो बन रहा है महाप्रसाद लेके पहले आप विश्वास मानिए आपके पास से महाप्रसाद बनेगा लेकिन उसकी महक कभी आपको अनुभव नहीं। लेकिन जैसे ही महाप्रसाद अर्पित हो जा रहा है वो महाप्रसाद बन रहा है वो तब उससे जो महक शुद्ध है उसका मतलब पहले ये होती है कि उनकी इच्छा होती है उस बात आप ये हो होता है कि जो महाप्रसाद महाप्रसाद को अर्पित हो रहा है उससे कुछ करना है कुछ अच्छे से मिल जाए और पहले लोगों की बिना महाप्रसाद की प्रतीक्षा करें। ये महाप्रसाद करने अगर बात करें तो फिर है कुछ अंदर क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि भगवान विष्णु राष्ट्र अंदर जाती अधिकार ध्यान करने जाती द्वारा श्रृंगार करने जाती हैं और भी लोग करने आते हैं। लेकिन हम राष्ट्र में सभी विशिष्ट व्यक्ति अपने स्थान पर रखते हुए हाथों को ऊंचा उठाकर सर्व समर्पण की दिखा दिखाई देते हैं। हाथों को ऊंचा करकर सर्व समर्पण में अपने आप को संभालना छोड़ता हूँ। मैंने अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है और ये हाथ ऊंचा करना इसी बात को दर्शाता है कि अब मैंने अपना दायित्व लेना छोड़ दिया है, मेरा दायित्व तुम्हारे वाली है, मैं तुम्हें अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ प्रभु, ऐसा कहकर अपने आप को भक्त से समर्पित कर दिया है। तब भगवान किस प्रकार से उनकी आवाज को सुनते हैं जिस प्रकार से एक छोटे से बालक को खेलता हुआ देखकर माँ अपने कार्यों में व्यस्त रह जाती है। उनका ध्यान उस बालक की ओर बिल्कुल ही नहीं जाता है। लेकिन जब वो बालक भूत की वजह से या किसी और वजह से पीड़ा होता है और रोता है तब माँ सब कुछ छोड़कर अपने बालक के पास पहुंच जाती है। उसी तरह से जब कभी भक्त अपने समस्त आर्थ के साथ अपनी समस्त पीड़ा के साथ एक रात महाप्रभु को बुलाता है और उस राह में किसी प्रकार का कोई गर्व, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ, किसी प्रकार का कोई मैं बना अर्थात मेरे होने का बना अर्थात मैं मेरी परी मेरा ज्ञान मेरा रूप मेरा धन मेरा अहंकार और इस सभी को छोड़कर जब भक्त एक बुलाता है भगवान को बुलाता है तब भगवान स्वयं दौड़ चले आते हैं। किसी प्रकार से संसार छोड़कर चतुर्धामूर्ति भक्तों को देखने में को करने के लिए यहाँ पर पहुंच गए। हाँ लेकिन उस दानी में संपूर्ण रूपेण समर्पण की भावना अपनाना जरूरी है। जहाँ कहीं पर भी समर्पण नहीं दिखता, जहाँ कहीं पर भी अगर हमने अपना आधार कहीं और चुन रखा है, किसी और को बनाया है, तब ईश्वर की प्राप्त नहीं हो सकती। संपूर्ण समर्पण मात्र ईश्वर का और ईश्वर भक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र साधन एकमात्र राहदारी है। और ये संपूर्ण समर्पण संभव है जब मनुष्य संपूर्ण रूपेण रजस और तमस से हो जाता है, सात्विक गुणों से युक्त हो जाता है और आगे की बात में तो वह गुणातीत हो जाता है, गुणों से परे हो जाता है। किसी भी प्रकार की किसी भी तरह के गुण उसे आवृत नहीं करते हैं और तब जाकर जब मनुष्य या कोई भी सृष्टि का कोई भी कर्ण देता है तो महाप्रभु उसकी रक्षा करने के लिए चले जाते हैं। चाहे वह कोई भी गुण पशु पक्षी जगत स्थावर इस सृष्टि की हर एक विभूति हर एक कर्ण महाप्रभु की शक्ति दिखाई दे सकती है तो भी जब वो संपूर्ण समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हाथों को उठाकर संपूर्ण रूप से अपने आप को संभालना, अपने आप को ध्यान देना, अपने आप को संभालना और अपने ऊपर के समस्त अधिकार को जब हम छोड़ देते हैं तब जाकर महाप्रभु की दिखाती है। अब ये देखिए ये महासमुद्र ये एक और नदी है जो इस मैदान के ऊपर दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से समुद्र में अलग अलग दिशाओं से कहीं हिमालय से कहीं और से निकली हुई अनेक बड़ी नदियाँ अनेक रास्तों से निकलती हुई अपने साथ अनेक प्रकार के अनुभवों को लेती हुई अनेक प्रकार की जीवन शैलियों को सिंचित करती हुई अनेक संस्कृतियों को आगे बढ़ाती हुई आगे बढ़ती हुई इस समुद्र में मिलकर एक लाख गुलाम है। उसी प्रकार से ये जो जन मोदी नाम कह सकते हैं भक्ति मोदी जो हर प्रकार के ऊपर हम अपने समक्ष देख रहे हैं यहाँ पर ही हर तरह से विश्व के कोने कोने से अनेक वर्ण जाति विविध भेद आदि सब कुछ लाकर सिर्फ और सिर्फ भक्ति की भावना को लेकर तो भक्ति आया है। कोई हमारे भाषण के साथ एक साथ हो जाता है उस परंपरा के साथ एक लाख हो जाता है और आज यहाँ इस पर्वत के ऊपर विश्व भक्ति के अलावा और कोई किसी प्रकार की भावना नहीं है। चाहे वह सामान्य भक्त हो जो पुराण हो या विशिष्ट पद पदवियों पर बैठे हुए महान राष्ट्रपति राज्यपाल मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री चाहे कोई भी यहाँ पर महाराज गजपति महाराज चाहे कोई भी हो आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महाप्रभु के भक्त हैं। सभी विचारों और अपने सभी काम धाम अपने सभी वैभव अपने सभी संस्कार सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक ही संस्कार में है और वो है जगन्नाथ की भक्ति की संस्कार। आगे बढ़ रहा है लेकिन बीच में छोटा सा रुक जाता है। रुकने के पीछे है कि थोड़ा बदल लोगों की अर्जियां सुन जो
अर्जी भर डाल रहे हैं, अब उनको सुनने की आवश्यकता है, उन अर्जियों को सुने, उनके शब्दों को सुने। कहीं भी ऐसा नहीं जो छूट गया, कहीं भी ऐसा नहीं कि जिसको प्रेम की आवश्यकता हो, उठते हैं, थोड़े अपने काम डालते हैं और भक्तों के भीतर के भक्ति भाव में बहे हुए उनके आंसू पूरी तरह से निकलते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चारों घोड़ों से, काले रंग के घोड़ों से सजा हुआ ये बलदाऊ का रथ, जो कि लाल और नीले हरे रंग के आच्छादन से आच्छादित है। इन रंगों की अगर हम बात करें तो फिर महाप्रभु के रथ का जो आच्छादन है वह लाल और पीला है। लाल रंग तीनों ही रंगों के समान है, पीला रंग जो है प्रसन्नता, आनंद का, उत्साह का, उल्लास का प्रतीक है, नवीनता का, नई सृष्टि का, नई प्रारंभ का और उत्साह का प्रतीक है। वहीं पर हरा रंग जो है समृद्धि का प्रतीक है, कृषि अर्थात समृद्धि, उत्पादन और विकास का प्रतीक है। और काला रंग संपूर्ण शक्ति का प्रतीक है। और मनुष्य को चाहिए, इस संपूर्ण सृष्टि को चाहिए क्या? यही तो कि वह समृद्ध रहे, आनंद से युक्त रहे और शक्ति से भरपूर रहे। और वो शक्ति ऐसी शक्ति नहीं जो उन्हें अहंकार से मंडित करे, वो शक्ति होगी जो सब कुछ छोड़कर महाप्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करने की शक्ति, ये शक्ति से युक्त हो। तो आज इन सभी सुंदर भावों से सुसज्जित के रथ निकल रहे हैं। हर एक रथ का अंश एक संदेश देता है, हर एक रथ पर होने वाली प्रक्रिया, हर एक रीति नीति एक विशिष्ट संदेश को लेकर आगे बढ़ती है। और कितने सुंदर तरीके से चारों ओर जो है भक्तों का समागम है, अलग सैनिक बल है जो भक्तों की सुख सुविधाओं का ख्याल रख रहे हैं। कहीं किसी को तकलीफ न हो, कहीं किसी को किसी प्रकार की असुविधा न हो और संपूर्ण भक्ति के पारदर्शी में चले जाए। और यहाँ पे दोनों ओर प्रधान के कृष्ण पथ के दोनों ओर जो दुकान, बाजार, होटल, घर हैं, उनकी जगहों को देखे और उनकी जगहों को देखे, हर जगह भक्त बैठे हुए हैं। कहीं से वो थोड़ी सी दृष्टि मिल जाए, कहीं से वो थोड़े से भगवान के दर्शन जाए, वो जो निष्फल नेत्र हैं उनके दर्शन जाए और मैं धन्य हो जाऊं, मेरा जीवन चरितार्थ हो जाए, इसी आस में भर कोई रहता है। और हम महाप्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि हम महाप्रभु ऐसे हमें दृष्टि दीजिए कि हम आने वाले कई वर्षों तक शुभ देख सकें, ऐसी हमें शक्ति दीजिए कि हम सिर्फ शुभ हो सकें, ऐसे हमारी मन शक्ति को उत्तेजित कीजिए कि हम मन से संकल्प ले सकें और सच सुनने, सच बोलने, सच देखने की इच्छा के साथ अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करें और साथ प्रार्थना करें जहाँ भी मेरी दृष्टि जाए, चाहे वो चक्षुओं की हो, चाहे वो चक्षुओं की हो। हे भगवान, आप रास्ते में रहें। जगन्नाथ स्वामी नयन प्रधानी होते, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वो पूर्ण कर्म पुरुषोत्तम है, बलदाता है, दुखहरा सुखदाता और मोक्ष प्रदाता है। ब्रज में जो यशोदा नंदन कृष्ण बुलाता है, कलियुग में श्री जगन्नाथ कहलाता है। जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की दिव्य लीला संदर्शन कर रहे हैं। महाप्रभु श्री बलभद्र जी महाराज अभी यथारूप करके गतिमान हो रहे हैं। कहा गया प्रभु दुनिया की नजरों में वह मुंह नहीं बोला करता, दुनिया की नजरों में वह मुंह नहीं बोला करता, दरिया का सुंदरता से बोला करता, धन कार्या की लीला को अनंत शेष मारा दे, वासित जगत प्रभु में कोई नहीं आता। ये कोई आत्मा नहीं है, अनंत भक्त यहाँ देख रहे हैं आप, निश्चित रूप से भगवान की दिव्य लीला संता हो रहे हैं और भक्त समुद्र में डुबकी लगा कर अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। असंख्य भक्त लाखों की तादाद में यहाँ उपस्थित हुए और बलभद्र महाराज जो कि साक्षात रुद्र स्वरूप है, महादेव स्वरूप है, अभी प्रथा रूप होकर के जन्मभूमि की ओर अग्रसर होने की प्रयास में देख रहे हैं आप। अभी निश्चित रूप से कुछ दिक्कत है, उसकी दिक्कत है क्योंकि वहाँ पे भक्तों की भीड़ ज्यादा हो गई है, इसलिए ठीक से रघु खींचा नहीं आ रहा है, इसलिए निश्चित रूप से एक समस्या खड़ी हुई है। उसी समय में उसका समाधान जरूर मिलेगा और भक्तों की भीड़ आप देख रहे हैं। अनंत भक्त जितने श्याम आई है, श्याम कुंड श्याम श्याम चाहिए, चारों तरफ श्याम है और भगवान जगन्नाथ के अग्रज बलभद्र स्वामी ये कौन है? ये कौन है? बलहर बलहरी बलहर तुंगला, बलहर बलहरी बलहर तुंगला, खनमी कलसन खनमी बगसा, खन पंचान खन गुजराई, खन शंकर खन देव अंगाई, खन गोकुल भय चराई लगाए, खन विमान ये कमल बजाए, खन गोविंद भय ये आकाम, खन लक्ष्मण भरुना तो का, एक शरीर लक्ष्मी वास, खन वैकुंठ कैलास, खन विद्यापति विपत्तवाही, वो नारायण शुभवाही, जो नारायण है वही शुभवाही है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। देख रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति के साथ महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उपमुख्यमंत्री सभी यहाँ इकट्ठे होकर के भगवान का दर्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप समर्पण कर रहे हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्वयं पुरुषोत्तम ही महाराज है और कोई नहीं, यहाँ से सेवक है, दास के रूप में और भक्त है। इसलिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ के अग्रज अभी ठहरे हुए हैं कुछ क्षण के लिए। लेकिन दूसरी तरफ साले की माँ ने कहा प्रभु आप हृदय में हो, आप भूल में होने के बावजूद भी आप अत्यंत हृदय में हो। भूल को इतने होगी इस पकल के बाहर, नदी को इतने हो बनाया है, इतने घर मिलते नहीं, उड़ाई हुई लाखों मालोदर मिलते तो गरीब की आंखों की आंसू पर, आप गरीब की आंखों की आंसू पर मिले हो। प्रभु देख रहे हैं रथयात्रा उदाहरण में महाधूमधाम भक्तियार उदाहरण के बच्चे नाम पतवायामी पतवायामी पतवतर सुनाए हमसे अंतर्यामी, ये सुंदर रंगनाथ की कला निश्चित रूप से ये सब बात हो रही है। कहने की आवश्यकता नहीं, जगन्नाथ की और सुभद्रा की रथ लेकर मनुष्य अभी वर्तमान होने की इच्छा में भागा रथभूमि जला है। न देख रहे हो रथ सहज चले किलकर, भक्ति भाव के कंपन से ही रथ चलता है हिलकर। देख रहे हो रथ पर्वत सहज चले किलकर, भक्त भाव के कंपन से ही रथ चलता है हिलकर। धर्मार्थ और कामोक्ष के रसे रसे जोड़े, रथ के सूचक लगे स्वर्ग में स्वर्गता ही होए। निश्चित रूप से भगवान की भक्ति भावना से परिपूर्ण होकर के रथ के पीछे रथ नाम हो सकता है, नहीं तो कभी भी
कल्पना नहीं हो सकता। और भगवान जगन्नाथ केवल सगुण साकार रूप नहीं है, निर्गुण निराकार रूप में भी और भक्तों के लिए उपासक है, भगवान है। इसलिए भगवान के निर्गुण निराकार रूप का आराधना का विलास होंगे। कभी क्या कहा, मैं कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, भूल चक्र में आए विराजे वृंदावन के वासी। वृंदावन के वासी आगे के कृष्ण विराज रहे हैं और देख रहे हैं वहाँ राज्यपाल, वहाँ राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री आदि सभी भगवान की लीला मान की लीला दर्शन कर रहे हैं। और आगे आपको आगे भूख लगना ये अक्षर ब्रह्म आत्मा की भाव करके भगवान के चरणारविंद में समर्पित होते हुए ये समस्त राजनेता महाही राष्ट्रपति से लेकर के मुख्यमंत्री तक मुख्यमंत्री तक सभी भगवान शरण आए हुए हैं। यदि प्रभु आप जगत के नाथ हो, हमारे भी नाथ हो, हम नाथ है, लेकिन हमको सुना करने की आपको कृपा करें प्रभु। और कहा गया प्रभु वो धनिया निधन कोई यहाँ फर्क नहीं, वो धनिया निधन कोई यहाँ फर्क नहीं, प्रेम के सिवाय और कोई यहाँ शर्त नहीं, असली लोग से वह कुछ हो जाता है। कलयुग में वो श्री जगन्नाथ कहलाता है, कलयुग में श्री जगन्नाथ कहलाता है। तो जय जगन्नाथ के नाम से शुरू हुआ ये भगवान भगवती का दर्शन का आप देख रहे हैं। ये लीला को बहुत वर्णन कर सकता है, कोई वर्णन कर नहीं सकता, क्योंकि कहा गया है शेष महेश गणेश गणेश शेष महेश गणेश गणेश सुरेश उदाही निरंतर गावे, जाहि नाथ अनंत अखंड अचेत भेद से बतावे, नारद शेष व्यास ऋषि जिहाद को निपान पावे, आय है कि जो निहार सिहाव छाप नाच जाए। तो आपको उपासना यानी दुनिया तो बहुत नचाए, लेकिन यहाँ भक्त और ये विभाव से यहाँ आकर के योग करते हैं और निज निज अनुसार देख रहे हैं। वहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल नाम है निज निज मंदिर में हरिगुण गावई, निगम शेष जो पार नवावई, हरिगुण अपने अपने सार्थकता अपने अपने कोशिश के अनुसार, चेष्टा के अनुसार, भाव के अनुसार वो भगवान का नाम लेते हैं। अगर या सुनाम लो, गुनाम सही, भाव से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलने से भगवान आपको मिल सकते हैं, आपको अनुभव हो सकते हैं, क्योंकि प्रेम है प्रभु, प्रेम और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है। प्रेम हरि को रूप है, हरि प्रेम स्वरूप एक वही प्रेम पूर्ण से जो सूरज और धूप, सूरज और उनके धूप में जो जैसा अंतर नहीं है, वही इसी प्रकार प्रेम और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। प्रभु आप कलयुग में निश्चित रूप से जो यहाँ आकर सेवन करता है महाप्रसाद मिटाता है, उससे जीवन का सारा अवसाद बंद बनाता है। जगन्नाथ कहलाता है। कल बड़ा नंदघोष भगरनाथ से निश्चित रूप से राहु के आवाज सुनते हुए सभी आकर्षण होते हुए प्रभु आपकी लीला निश्चित रूप से देखने योग्य है, देखने लायक है, क्योंकि आप समग्र संसार को आनंद प्रदान करने वाले हो प्रभु। आप सकल और ब्रह्म और धाम और गति और तेज और लीला और रूप और राष्ट्र दिखाई है, परम चरित्र योगी परम विचित्र कला परम श्रेष्ठ सर्वकाल दिखाई है, परम कृपा को रूप परम प्रभाव और धर्म भवभूपते विभागी है, परम अतीत को सो पावन करम भागो ले श्री मेरी लाजल को दिखाई हे लाजल की दिखाई मेरी सुविधा भी ले सकते हैं। आप ब्रह्म में उच्च धाम वाले हैं, अचिंत गति तथा तेज वाले हैं, सर्व लीला सर्व सुंदर रूप तथा अनंत शक्ति धारण करने वाले हैं। आप जैसा आपका उत्कृष्ट चरित्र है वैसे ही अत्यंत विचित्र कला है। रघुराज कह रहे हैं आपका परम श्रेष्ठ है, आप परम पावन रूप तथा उत्कृष्ट अनुपम भाव प्रधान जिसके द्वारा संसार रूप से उद्धार करने वाले हैं, परम पति को पवित्र करने वाले लाल के स्वामी विहार करने वाले ऋषि मिलेंगे। आप सुधी लीजिए हमारे प्रभु, क्यों क्योंकि आप ही मेरे अत्यंत प्रिय हो प्रभु और आप ही निश्चित रूप से हमें रक्षा कर सकते हैं। और प्रभु आपका वर्णन किसी एक गोपनीय रहस्य को व्यक्त करता हुआ आ सकते हैं। यहाँ प्रकट रूप से आज ब्रह्म का वो आकार है, वो अत्यंत आनंद देने वाला है। शिशावास बलदेव जी का स्वरूप शुक्लवर्ण तेरे विद्युत वर्ण योग माया गुप्त विभाग का प्रतीक है, जिनका वर्ण और नाभा युक्त अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। हे लालेश्वर विचित्र प्रकार के अपने ग्रहण के कारण आप आज प्रतीक हैं, लेकिन प्रत्येक एकीकरण का मायावी स्वरूप ही ग्रहण करा जाए। वही ओंकार सर्वम ही भाव से वेद में मिलते सिद्ध स्वर का साकार विग्रह आपने धारण किया हुआ है प्रभु। इसलिए आप देख रहे हैं भक्ति व्यापार भी देख के लग रहा है यहाँ भक्ति का एक शब्द मानो उतल रहा है, मानो लहराई हो रहा है। अत्यंत सुंदर दृश्य आप देख पा रहे हैं। आर्य हो सकल बल श्याम बक्ष विराजमान अमल कोल नबे लचका सही अनल सी फाल कावे लीला साराज नयन विशाल सकाल करुणामयी वृत्ति विलास सुष्टे समी महिलो मन मुस्कान महामाधुर्यमयी कृपा के कमला कंत कटाक्ष रघुराज जैसे दीनदास न भेदी आप भय कांत की प्रभु जलपुर में समान श्याम सरिता हे कृष्ण आप याद रहे यहाँ जिनके पवित्र गाल और केश की निष्ठा चाहिए हरचंद्र सदृश शंकर राम सदृश लगे तथा विशाल दर्शन में करुणा करते हैं। विशाल माने नेत्र वाले अमल नेत्र वाले विशाल नेत्र वाले चका की साधने वाले आप समग्र संसार को आनंद प्रदान कीजिए। और आया प्रभु निश्चित रूप से आप समग्र संसार की आनंद कर रहा है, आनंद आता है। ये राजस्वरूप आप साकार होते हुए दिखा रहे हैं। अणाक्षर नवी से करती है विश्वास नमस्ते द्वारा प्राचीन बात से आपकी महिमा प्रकाश हो रही है। अणसर्ग में रहकर पुष्ट का विशाल भाव से आपने बड़े कारण को याद किया है। अपन जगह को विशाल भाव से आपका भाव है प्रभु। यही कारण है हम प्रभु की तरफ से बड़ी आपकी विलासवादी से हर काल से किया है। इसलिए आप समग्र संसार के भक्त जनों को आनंद प्रदान करने के लिए पृथ्वी से ऊपर करके सबको आनंद प्रदान करते हैं, कृपा प्रदान करते हैं। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ तुलेंदी वरोचनम नवगम श्यामाभिरामाकृतिं विश्वेशं कमलाविलास विलासपादारविन्दद्वयं तज्जनिं सकलेधमनितमुखं चक्रान्तहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासायं अद्य
पवित्र रथयात्रायां वयं बोलयामः प्रथमं ज्येष्ठराजो रथप्रदेशस्य भवते अग्रेसरि तत्र सर्वतः प्रवेशमहात्महृदयमिति यात्रास्रा भवनसा ससिपुना तरारुढो उत्वा सुगतिमातु स्वरूपं तदावश्यं नीत्वां सकलनाथा सुहृदया जगन्नाथप्रसी चरणकमले नदिति महाप्रभु श्रीजगन्नाथ भगवेशः हृदयासः पति वशं कुशले अभिने मातुसु गुरुमार्गेण सम्पदिकां प्रयच्छति इदानीं पश्यन्तु रथः वर्तते अष्टार्थः वर्तते इदानीं पुनः तत्पर्वतस्य आगमिष्यति अभ्यग्रे बलवस्य प्रथमतः भक्ताः अपि तत्र संयुक्ताः वर्तन्ते सर्वरक्षणाय ते पतनमुखनिताः सन्ति यतोऽग्रः योष्टिकं समर ऊर्ध्वनिमुष्टिकारि प्रधान्यजगतां सदे स्वर्गं तन्रोहिणी कटसारदा चन्द्रं सन्देशाकलं फलदेवदेवं ओ तत्र काकुकैः सह समुद्रम् इदगायति व्यक्तं च तत्र सञ्चयति व्यक्तस्तः समुद्रम् इदगायति अस्य इदेन पतनमहता उत्साहिता भक्ताः तत्र जागरणं कुर्वन्ति अन्यस्य व्यक्ताः मतन्त्यं कुर्वन्ति हस्तजलम् उपरि तत्र उत्थाप्य ते जय जगन्नाथ जय बलभद्र जय सुभद्रा इति जयध्वनिं कुर्वन्ति सर्वत्र जयगाः श्रीयते अतः रथयात्राविषये काचित् भक्ति भावना परम्परा वर्तते श्रीजगन्नाथस्य सिंहा नन्दिदासमुदेरक्षम् अतः तस्मिन् काव्येऽपि रथयात्रायां भक्ति भावना भवति सः कविरति किमिति तत्र श्रीकृते भक्तानां निकटे पापं स्थानं भवति यात्रिणां शरणेन प्रभोः पदे शरणेन प्रभोः दर्शनेन तस्य पवित्रनाम स्मरणेन पापं सर्वदा अधिकं भवति तदा पापं यात्रिणः शीघ्रमेव आगत्य यात्रिणः पादतले भयेन आश्रयति भवति श्रीकृते प्रवणं योगकरणं तद्दर्शनं यात्रिणां दुष्टानां विमोचनं जानाति दुःखितं तस्मिन् यात्री सजीवभागैः प्रयाति चाण्डे स्थलं विद्यापराश्रये प्रमादपदनं प्रसन्नादनं पापमपि भयेन यात्रिणां पादतले आश्रयति अतः भक्ते महात्म्यं यात्रां विषये पश्यन्तु अतः युगदानप्रदानमपि कथ्यते दण्डे जनसमुद्रविषये केवलं उन्नमहाभूर्यते वन्दः पश्यन्तु पुरीनगरस्य समुद्रं चित्रं भक्ताः आरक्षकाः सेवकाः रथोज्ज्वलाः आगमनं प्रतीक्षमाणाः एवं च भवति यः सुमधुरगीतध्वनिना सर्वान् प्रेरयति उत्साहयति समेतरसः प्रतीक्षमाणः वर्तते यदा आदेशः भवति तदानीमेव अग्रे गच्छति एवमेव तत्र श्रीक्षेत्रे ततश्लोकाले भारमानां श्लोकात् चीलनात्मकं समस्तभवति इति लिखत् स्वर्गज्ञा भूलोके अपसादेन प्रभोशामृतम् इंग्लैण्ड फ्रांस जर्मन अमेरिकाभ्यः देशगुणाः भवन्ति तासु शान्तिप्रदा भारतवनिराते पत्राद्य सूर्यचन्द्रप्रभृतीनां श्रेष्ठां लीलाते अवस्थित्वा सर्वया सेवां प्रदर्शयते विद्याय सागरं भारतमाता स्वर्गादातयो कवे अति उद्भावनकर्माणि माकण्डे सर्वद्रुभगवत् विघ्नेश्वरादिमकान् राधाकृष्णविदेशार्पति सन्नायादिसदा चिल्लाविवासं संजय देवसंसेविं पृष्ठाहारमार्गागवति नागातिनिसागनागनो स्वर्गात् इन्दुसमागवति भगवत् महाप्रभु पतिभ्यां पवित्रां तयत्रां भारतनि गिरिजा मस्जिद चौकिदारी प्रभो बलिवंशकारो नानाभक्ति संवर्षयति गिरिजा चन्द्रमन्दिरं नानागुणसुन्दरं संघा संस्थापितं प्रभो बलिवंशाकुलविद्यारा पुराण वेदतु श्लोकशास्त्रसंयुक्तमि नानाभक्तिनदी सभाजति साधर्चयत्यागः हारमागा निरलवाद विद्याचारणां तपस्विनः वैज्ञानिकान् धार्मिकान् शास्त्रज्ञान् समदर्शिनः साधुन् सरलास्तीनां सत्यन्यायव्याख्यानानि विद्यानियन्त्रणां सुष्वा देहि साधनं को अदनुकार्यं मुक्तिमन्दिरिका तपस्विनो देशपरि सुसी प्रदर्शयन्ति तथा वता सनः वेयु अत्यन्तम् आनन्देन नृत्यं क्रियु एवं च भगवतः नामोच्चारणं क्रियु हरिनाम केवलं अस्तेव विरञ्जनायि एवमेव तत्र विद्याधराणां तपोधिकान् वैज्ञानिकान् धार्मिकान् शास्त्रज्ञान् समदर्शिनः स्वाधीनमुक्तात्मकान् सत्य न्याय व्याख्यानादिज्ञानान् सुष्ठुः प्रभोवं तेजस्यारात् एवं कवि भारतमाता प्रतिवर्षं वेदं स्तोत्रेण संयमं प्रचोदनेन विद्युतं आनरूपेण विहगध्वनि शङ्खध्वनिति आकाशस्य विश्वं दुःखयति तद्ध्वनि दुर्गध्वनिति प्रभो पादुलं असकृत् आवाय माला अत्रैव परिकरण अभिसमर्पृथिभिः धातुभिः विश्वामित्र वसिष्ठसुमनः वेदव्यासप्रणव गौतमप्रभृतिभिः ऋषि द्रोणशरणोपादमनप्रभृतिभिः च वीरैः प्रभो पदलिङ्गं संसेवति प्रवणम् अमकालनं भवति भारतमातुतिकलनि भक्त्यात्रयात्रावरे श्रीविधानमुदयति कवे उपारिकरणा महाराजार्णव कलाकलनि तद्गुण्डिकाख्यो सवे सुदेशी प्रदानां महातितस्थे सुन्दरे पदासि भवदेवनदीनां दायिकान् भक्त्यामुदयति शान्तमनसा सर्वसन्ति Itu
एक चक्कर में आया था घर से क्या बोला इसका तुम्हारा बहुत अच्छा लगता है अब पूरा नहीं हो गया दिल तो वॉशरूम में स्टीम नहीं होता है कुछ नहीं करते बंदा फील आता है हमारा सुमित तो यहाँ से क्या कर दिया उसका भी वो सब हाँ वो तुम्हारा पास कैसे मिल गया बहुत ज़्यादा सुंदर लेकिन अभी नई चीज़ क्या करना अभी बारिश खत्म होने के बाद जाने से अच्छा लगी अभी क्या होता है आपको लैंडस्लाइड आई था क्योंकि सबसे अभी तो दूसरा बन गया है कश्मीर साइड में उससे पहले तो था ना हाईएस्ट स्टेशन लमडिंग था सबसे ऊंचा स्टेशन लमडिंग का उधर टूटे गई उसको परफेक्टली ठीक भी नहीं करा था ये नहीं कि उसको सब काम नहीं ईस्टर्न रेलवे का काम नहीं उसका मिलने से कितना करोड़ रुपया आता रहता है सब हमारे उसे सबसे बहुत ज्यादा सस्ता जितना है वो देखिए अरे इसमें उसको पता है एग्जाम के तो यहाँ से किस टाइप निकल लोगे कितने काम है साइड में टिकट 8,000 मिल जैसे आने के मैं हम बात अगर दिल्ली जो गया था मुझे 19 लगा फिर मैं वहाँ से मुंबई तक मुंबई एक स्टॉप दे गया 3 मिनट बाद स्टॉप दे गया वो तो सब आने के टाइम फिर अभी देखो कल मैं मुंबई ये भाई और ले जाना फिर अभी डॉक्टर ने दवाई लिया दवाई से वो दवाई का रिजल्ट ऊपर डिपेंड करके आपका ये देगा कितना दवा का किलो देगा Semua? Gimana? Semua. Bisa. Nah, guys, jangan dulu bisa. Oh. Apa itu? Simpel sepakat ini. तो एक ये तो पढ़ा नहीं चार साल हो गया अभी 4 साल का हो गया आपसे हाँ एक नॉर्मल हेलमेट तो पहनने के लिए एक बार मुझे बात हेलमेट चले ये बात ये वाली क्रेडिट कोर्स है तो आपसे मैं कैसा लो इसमें पूरा गया आप सेंट्रल में पास लेके आ गए सेंट्रल का लेके सेंट्रल का लेके सेंट्रल ये अभी क्या किया है ये वाला किया पहले सेंटर पे उसको बोला है ये नौरे का पैसा नौरे का क्या नौरे का हो गया आराम से समझ के ट्रांसफर वो उसका एक्शन को वो मुझे नहीं बोले वही बोले नहीं यहाँ पे आप टीचर को वैकेंसी यहाँ पे रहता है हाँ
अभी कॉलेज में पढ़ा लिया है तो मैं लगता है से वैसा नहीं है कॉलेज में कॉलेज में पढ़ा हमारे कॉलेज हाँ ये लगा दे हाँ यार कलर बेटा हम भी लाएंगे बुरा उड़ी मेरा डाक्टर कॉलेज में सब तरह से यूनिवर्सिटी बोलते हैं एयर होस्टेस ऑफिस पूरा सारा वैकेंसी रहता है एक बार नहीं रहता कब क्या हो गया मतलब किसी का कुछ इसका लिमिट होता है कि उसका सेकंड रोल उसका ये सबसे कुछ नहीं करता इसका रोल से इम्पैक्ट उसको मुझे और ये मूवी तुम करेंगे तो देख के देख सकते वो तो बोल रहे हैं हां अरे ये तो उसका एक्सप्रेशन उसके इसके लिए सारे अच्छा दिखा गया जय ये हीरो है ना ये अच्छा ही करता है एक्टिंग सही अच्छा एक्टिंग बेटा देखो बहुत सारा गाड़ी कैंसिल कर रखा हुआ है टाइम है ऊपर चलने के लिए 25 मिनट्स लेना है 25 मिनट्स ऊपर नहीं और मेंटेन मुंबई से आपको कुछ तो एक पॉइंट ऐसा कि वो बताया था कि अनाउंस किया लेफ्ट हैंड में लिखी लाइट सी मैं कल भी मिले इसमें चीज़ लग रही है दूसरे से लगता है ना लेकिन अंदर क्या किस अंदर रहता है कृष्ण का उनका जन्म का नहीं कृष्ण का है इसमें हां कृष्ण का कृष्ण हो गया हार्ट को सही नहीं करता बेटे का वो हार्ट को रखते हम तो बनाते हैं ना तो 25 साल बाद एक बनाता मूर्ति से 25 साल बाद नया मूर्ति बनाते इसमें तो वो करने वाले हां हो जाता है सेम होता है एक आदमी को तुम्हारा एक पिक्चर पूरा बन गया सब सेम बनता है सब ये करके पूरा संकल्प बताइए ये वाला कुछ करने का कुछ बात कर नहीं
ये साइंस है, ऐसे एंगल बनाया कि यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसा करना पिछले वाले की बाइक का उतार रहा है एक डिजाइन है, वो डिजाइन को उसने अलग अलग एंगल्स दिखाया, अलग अलग दिखाया, ये अलग अलग था, चीता, अब तो मेंढक, अब तो मार, ये पता चला अब तो बंदर, ये चलो मुगमी का मंदिर दिखा मुझे, मुगमी का सुबह होता है संस्कृत लग जाता है, उसके बाद हम अलग सेम मूर्ति है, लेकिन तीन टाइप के ड्रेस पहने से एक सेक्शन में देखो अरे उसके लिए कर लगेगा अरे भयंकर है, कभी बुद्धू पकड़ता है सब ले जाता है। ये मेन चीज क्या है, ये बोलते हैं कि ओरिजिनल भी नहीं है, ओरिजिनल पहाड़ ऊपर शंकराचार्य ये को लेके जा रहे थे, ये सरस्वती को लेके जा रहे थे, सब कुछ साथ में इंस्पिरेशन में नहीं ये सब प्राइवेट सिस्टम में ये तो लाभ है, तो बहुत इंस्पिरेशन आता है, तो उसने क्या था ये करने के लिए ये संस्कृत के को लेके जाने के लिए लेके आ रहे थे, उस जगह क्या किया उन्होंने क्या कुछ खास हो रही पीछे मुड़ के लेके आए, तो ये साउथ इंडियन ट्रेन कैसे दुनिया बता रही है, ये सब नॉर्थ इंडियन ट्रेन बता नहीं देता है, नहीं वही तमिलनाडु में हैदराबाद था, हैदराबाद का अलग रहता है, और केरला का अलग है, केरला का सारा बॉल ये का फ्यूजन हो गया, हां चावल का पूरा फ्यूजन हो गया है, आपका वे कनेक्शन डाल रहा है भाई, तो इधर को इधर का साइड मिला छोड़ करने के लिए ये देखिए कैसे क्या पूरा किसी को पता नहीं किसी को पता नहीं एक और ग्लास वाला पूरे भी तो हम सही से क्या होता है, जब सरस्वती को लेकर आ रहे थे पीछे मुड़ के देखने से भाग रहे थे, पीछे मुड़ के वही हम समझ रहे हैं, जब शंकर आगे चले तो वायु का होता है, तो आगे आवाज बोल लीजिए, तो उससे क्या हुआ वहाँ पे वायु लोग तो साइलेंट सबसे आराम से वही पॉइंट किया क्यों ना एकदम से पॉकेट में बना भी होता था तो मोबाइल पे आया पहले जो था मोबाइल पर पहले तो फोटो लगाना एक फायदा and getting themselves to India and following the organizations of worship. And there's another international society. And there are other organizations also. Those are kind of पहले वाले का कितना वेट करता है मोबाइल में 2 किलो फोटो लगाना है आज का 2 किलो एक्सपेंसिव हो जाता है the way we feel, the way we express our worship and worship and the belief of God in the same way. The eternal sport we can live in them. It is history of the creation and the history of the existence of the world. And we end up 13th century, precisely where to 17th and the place itself, the Queen was called Kusuram, and it came from the Jewish town, and the and the beginning it was a rock and he lost to and onwards the government accepted order of creation. And this is the case where the is and the somebody are there also said and
This is how, following the divine protocol, this is नेपाल the chariot of Dr. Balaram be following, the chariot of Dr. Balaram that is powerful. And last of all, so as for the design and the programs of the government and of the central administration, and as for the constellation of stars, the way they are like of the journey is trying to be airport today, even though the rituals and we will be the and we are blessed once again after 53 years. We are like having 61. Which I was also the officially it will be done today and today the second body is done and we will also get back to you. And morning and we shall continue with the channel. On the right road and witness the and enjoying the praise of the Lord. And the chair of the is already ये साइज का तो मतलब देखो भगवान भी होता है तो जहाँ पे कम होता है तो वहाँ पे बड़ा तरीके से अधिकार बड़ा तो इंटर कर ले कितना बड़ा ये हो ये और न्यूज़ सिक्किम में देना शुरू कर लेकिन इजी हो गया ये सब देखो properly and group representatives everybody to the last 2 page of Lord Jagannath. And this is how it is all packed, everything is systematic and nothing runs together, it's all systematic and the way it is being rolled on the left side, Yan the Chief Minister of Odisha, Sri Mohan Chandra Machi, and on the right, OCK, His Excellency the Governor of Odisha. We have been the prerogative of the Chief Minister and the Council of Ministers to ensure that the festival happens smoothly and is conducted very smoothly with the number and the visiting of the people in large numbers coming from different areas. And I was talking about the living of the and of which 600 acres are available. And as is really seen, that is the vegetation. And Odisha, being an agricultural state, agrarian state, it is still alive to the remains of the world. Because we have to live in peace with the nature. And peace is a kind of peace. Peace is literally designed by God and existed by God. Man has to go by that in a specific way. If we go by that, then we get places. And if we come in a deviation, we invite the man of the divinity. And as you all see, since the beginning that I don't like getting that. So this is peace with the Lord Himself, the peace with divinity. And peace with divinity can only ensure the salvation of the nation that we are looking at. And in deviation, if you as city, and we have to get it. Go beyond the 10th commandment that just sit, can commandment as they are forgetting to do but still then, not realize what are people, and not to do this, but these are all the things. And you will get, by the Lord and also,
have seen. And that is the way we do that. Adoro el calor, todos son buenos, es súper bueno. Then there is salvation, and we can be over with peace of God that we can ensure. And that is the way this is the pulling of the chariot has just begun by the evangelist, and everything is set. And peace, I was talking about the two systems of peace of God and peace with God. And third is peace with ourselves. If we have a development and we can spread a message of love and peace among ourselves and we live in harmony with nature and the existence of God, that is peace with ourselves. So the peace comes in three stages, and if we hold on to that peace, then the life becomes pure and divine. And that is the essence of Jagannath consciousness. And here we can see the crowd of people there enjoying every bit of the moment there, of the Jatra, of the Jatra, traveling on this journey, and the other is fair. There is unfair, no doubt, but still there are part unfair that has to be the divine journey. So everybody is enjoying both the Jatra. Y tipo de visual se puede achar, And bueno. the great flag standing to the eager crowd to do the chariot of Parashara. Now it's time for बहुत अच्छा माया समझ देखो हमारे महासमुद्र की कारक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और महामहिम राष्ट्रपति जी अब यहाँ से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि रथ अब सुभद्रा के रथ के पास जाते हुए अब थोड़ी देर में ये रथ अपनी जगह पर रुक जाएंगे, क्योंकि जैसे ही सूर्यास्त हो जाएगा रथ रुक जाएंगे और सुभद्रा के रथ के पास जाते हुए और उस रथ को खींचते हुए उस रथ के परमिशन मुझे बहुत कुछ है रथ को अपने हाथ में लिए हुए वो तो हमारे लिए रथ को अपने हाथ में खींचते हैं। eso हमारे देश की प्रतिनिधि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महिला और सुभद्रा के रथ को खींच रही हैं। क्या ही सुंदर मतलब ऐसी कैसे दो शक्तियों का मिलन, एक योग माया महासुभद्रा और दूसरी ओर भारत खंड जो कि विश्व को देना चाहता है, उसकी प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति स्वयं उस रथ को खींच रही हैं। महामहिम जगन्नाथ विश्व चेतना के प्रमुख संतति उसको कोई कुछ नहीं लिया कुछ नहीं लिया जहाँ पर गुरु नानक शंकराचार्य ये भी चला गया ये तो कम है 15 साल की है मीरा तुलसी सर वो तो बहुत बड़ा 18 साल की 1800 जाति निर्विशेष इसी ने छोड़ के हर व्यक्ति महामहिम की कर सकता है, सेवा कर सकता है। नेटी से वापस फोटो जगदीश है साल विश्व के आधार भर ऊपर चलेगा पूरा लेप जमा हुआ रहता है सिर्फ एक और जगह है ऐसे विश्व के आधार अगर परिवार कामनाओं को पूरी करने के लिए हम किसी सुंदर रचने महामहिम राष्ट्रपति और रथ को खींचते हुए अब देश के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सभी भक्तों को बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, बराबर का अवसर मिलना चाहिए और अब भक्त जो हैं इस रथ को थोड़ी दूर लेकर जाएंगे और थोड़ी दूर में अभी रथ रुक जाएंगे, क्योंकि 10 बार रथों और खींचना या रथों में रखना जहाँ वहाँ से कर जाते हैं और उसके उपरांत सारी नीतियाँ रथ पर ही होंगी और सारी नीतियाँ रथ पर होंगी, जो निश्चित रूप से कुछ तो श्रीमंदिर के भीतर हो रही रीतियों के समान होंगी और कुछ नीतियाँ श्रीमंदिर में होने वाली रीतियों से अलग भी होंगी। तो ये सारी नीतियाँ रथ पर संपन्न होंगी और ना 8 बजे सुबह से रथ खींचे जाएंगे और जिसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर आप देख पाएंगे और हम पुनः आपके साथ होंगे और महाप्रभु का कार्य बरगुमान करते हुए उनकी गीत का कार्य करते हुए आपके समक्ष हम से उपस्थित होंगे। थोड़ी देर के लिए महाराज कोई भी ट्रेनिंग कर पाया वो किस तरह से